Am I audible now? Yes, ma'am. Yes. Okay, thank you. Right. Sakshi? Sir will. Sakshi? She's not there, ma'am. She is there, sir. Sakshi, please unmute yourself and start. Okay, fine, ma'am. The other sir did not come actually. He will join, ma'am. He will join. Let him join. Okay. Champaran, the land of King Janak, a refuge for sage Valmiki, a town lost in time, invites you all to revisit its past. It was Champaran that turned Mohandas into the Mahatma. If Porbandar is his Janma Bhumi, then Champaran is Gandhi's Karma Bhumi, Biharis claim proudly. Wishing a very good morning to our honorable guests, respected teachers, parents, and my dear schoolmates. I, Sakshi Sharma, a student of class 12th and a proud Bihari, welcome you all to this fun-filled, informative webinar on Champaran, where Mohandas became Mahatma and the role of Sri Rajkumar Shukla ji. Now, without further ado, I request our respected principal ma'am, Ms. G. Mala, to deliver the welcome address. A very good morning. It gives me a great pleasure to welcome our esteemed guest, Mr. Ravi Bhushan Roy, Mr. Bhairav Lal Das. I take this opportunity to welcome both of them. Welcome you, sirs. And also, I take this opportunity to welcome our director, Mr. Praveen. Welcome you, sir. Dear parents, teachers, and my dear students. Welcome to this wonderful webinar on the Champaran Satyagraha. It is indeed gratifying that the English department has been so thoughtful in organizing this webinar on a historic movement. Now, what was that particular movement? When one of the students suddenly informed the class English teacher that the person who had started this particular movement with Mahatma Gandhi ji was my relative, and the whole story started there. So an account of which has been prescribed for the class 12 students. They have been fortunate in being able to invite as resource persons the grandson of Sri Rajkumar Shukla, was instrumental in the Mahatma undertaking Champaran Satyagraha, and a researcher who has written extensively on the movement. I have a great pleasure again in welcoming Sri Ravi Bhushan Roy and Sri Vaibhav Lal Das, who are with us at this webinar as our esteemed guest speakers. Sir, we look forward to an interactive and insightful webinar. Thank you. Thank you, ma'am. Now, I request Mrs. Shanti Ramanujan, Head, Department of English, to brief you all about this session. Sakshi? Good morning, ladies and gentlemen. Just a brief introduction to this webinar. The webinar came about this way. The Champaran Satyagraha is a prose lesson prescribed for class 12 under the title Indigo. The essay is an excerpt from Louis Fisher's celebrated biography of Mahatma Gandhi. The essay talks about the Champaran Satyagraha and the sterling role played in the movement by a local agriculturist called Rajkumar Shukla. When I was teaching the lesson, one of my students, Sakshi Sharma, interrupted me with excitement. Madam,
He was related to me, she said. Who? Mr. Rajkumar Shukla? I asked her, and she said, yes. His grandson, Mr. Ravi Bhushan Roy, lives in Bihar, and we are in touch with him. It was then that I thought of the webinar on the Champaran Satyagraha with Mr. Roy as a speaker. With Sakshi's help, I invited him to speak about Champaran Satyagraha and the role of his grandfather, the late Sri Rajkumar Shukla. When I invited Mr. Roy, he said one of his friends, Mr. Bhairav Lal Das, had done quite a bit of research into the Champaran Satyagraha. He suggested that Mr. Das could be also invited to speak at the webinar. So I invited Mr. Das also. We'll introduce the two speakers formally in good time. Before that, a brief introduction to the Champaran Satyagraha, which was launched in 1917. What was it about? Rajkumar Shukla was an agriculturist of Champaran. He was distressed by the plight of his fellow farmers. European planters had enforced the Tin Katiya system, which meant that farmers had to cultivate indigo in 3/20th of the total land. German synthetic dyes had replaced indigo towards the end of the 19th century, and the European planters demanded high rents and illegal dues from the farmers. Gandhi had returned to India from South Africa just 2 years earlier. In 1915, Rajkumar Shukla had heard of Gandhi's achievements in South Africa, and he wanted to bring him to Champaran to fight for the farmers. He succeeded in persuading Gandhi to visit Champaran. A huge crowd had gathered in Champaran as Gandhi, accompanied by Rajkumar Shukla, Rajendra Prasad, N. Parekh, J.D. Kripalani, M. Desai, and Mazhar-ul Haq arrived there. The alarmed authorities tried to stop his convoy, but Gandhi defied the order, calmed the crowd, and chose to accept punishment. It was a novel method of fighting, passive resistance or civil disobedience, or what is more familiarly known as Satyagraha, and the authorities didn't know how to handle it. They relented and allowed Gandhi to talk to the farmers. Gandhi and his associate toured the villages and held open discussions with the villagers. Having heard their grievances, he demanded that the Tin Katiya system should be abolished and that farmers should be compensated for illegal dues. To cut a long story short, as a result of the Satyagraha, the European planters left the area for good in the next few years. Champaran commenced Gandhi's pioneering experiment in Satyagraha in India, and Rajkumar Shukla's role in it was crucial. Thank you. Thank you so much, ma'am. So, dear listeners, it's now time to hear from our guest speakers of the session. So, firstly, I would like you all to be introduced to Sri Rajkumar Shukla's grandson, Mr. Ravi Bhushan Roy Ji, who is a retired police officer and runs an organization for the establishment of memorials of Pandit Rajkumar Shukla. He will be now saying a few words about his grandfather and his initiatives. Over to you, sir. Ravi Bhushan ji, unmute कीजिए आपका mic. Welcome, sir. Ravi Bhushan ji, please unmute. Sir, can you hear me? Ravi Bhushan Roy Garu. Please unmute yourself. Has he unmuted? जी 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 मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? सुनाई दे रही है सर, बात कीजिए। सबसे पहले तो मैं डीपीएससी स्कूल
विजयवाड़ा के परिवार, खास करके इस स्कूल की प्रिंसिपल जी माला जी एवं शांति रामानुजम के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। और विशेष रूप से मैं सुश्री साक्षी को बधाई देता हूँ। उन्होंने परिसर के इसमें हिस्सा लिया और उनके ये सराहनीय पहल से यहाँ हम लोगों का आना संभव हुआ। और यहाँ पर उपस्थित सभी अभिभावकगण, शिक्षकगण और इसमें पार्टिसिपेट करने वाले सभी बच्चे को मैं ढेर सारा शुभकामना देता हूँ और उनके सफल सुखद हूँ, उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। मैं पंडित राजकुमार शुक्ल का नाती हूँ। इस संबंध में मैं थोड़ी बात कहूंगा। हेलो हेलो सर, थोड़ा दूर जी, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? सुनाई दे रहे हैं। हेलो, दूर रखे माइक, थोड़ा दूर रखिए स्पीकर। अच्छा अच्छा। तो मैं इस संबंध में कहना चाहता हूँ कि एक ऐसा व्यक्ति जो गांधी का बिना नाम लिए गांधी का काम शुरू करता है, बल्कि गांधी को गांधी बनने पर मजबूर करता है, और मात्र 30 साल की लड़ाई में वो सैकड़ों वर्ष के गुलाम देश को आजाद करता है। दुर्भाग्यवश वह व्यक्ति आजाद भारत को नहीं देख पाता है और उस व्यक्तित्व का नाम है पंडित राजकुमार शुक्ल। हेलो जी, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? सुनाई दे रही है सर, आप थोड़ा दूर रख के बात कीजिए स्पीकर। अच्छा अच्छा। और बाकी जो है इस संबंध में अगर समय मिलेगा तो मैं एक चमत्कारी घटना बताऊंगा। अभी तो बहुत सारे वक्ता लोग हैं हमारे, ये इस किताब के लेखक हैं भरतलाल दास जी जो आए हुए हैं। जितने बच्चे लोग होंगे उनसे वो अपना प्रश्न करेंगे। हम वही बात आप लोगों को बताएंगे जो मेरी माँ हमसे शेयर की है, और मेरी माँ की माँ यानी मेरी जो नानी मेरी माँ से शेयर की है। एक आध ऐसी घटनाएं हैं जो काफी रोमांचकारी है। अगर वो समय मिलेगा लास्ट में तो आप लोग अगर उनको मौका देंगे तो मैं वो बताऊंगा। वो किया और कहानियां में छपी थी, एक पत्रकार मेरे बात से कुछ छापे थे जुलाई 1981 के अंत में वो छपा था। अब तो वो प्रकाशन शायद बंद हो गया। जी, सुनाई दे रही है मेरी आवाज? साक्षी रिस्पॉन्ड। साक्षी, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ, दे रही है सर, आवाज सुनाई दे रही है। और जो भी क्वेश्चन है आप लोग पूछिए, और पूछना है तो आप पूछिए। बच्चे दे दिया। Sakshi, go ahead. Don't unmute yourself. Don't mute yourself. Okay. Go ahead. ओके ओके। जी जी, आपकी आवाज आ रही थी नाना, और बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस संबोधन के लिए। अब जी भरतलाल जी हैं? जी 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 है जी। Thank you for your address to our students, sir. I now take the opportunity to invite Mr. Bhairav Lal Das ji, who is a close friend of Mr. Ravi Bhushan Roy ji and has authored several books as well as research journals. He has also been a part of 3 documentaries on the subject of Champaran Satyagraha and has been a part of several radio talk shows as well. He is going to present some really incredible facts about the milestone movement which paved the way for India's freedom struggle. And so, let us give him a warm welcome. Over to you, sir. नमस्कार, बहुत धन्यवाद साक्षी जी आपको। सबसे पहले मैं प्रिंसिपल मैम जी माला जी और मैम एचओडी इंग्लिश हेड शांति रामानुजम जी का आभार प्रकट करता हूं। डीपीएस परिवार, डीपीएस विजयवाड़ा के पूरे परिवार का आभार प्रकट करता हूं जो उन्होंने इस महत्वपूर्ण विषय पर वेबिनार का आयोजन किया। और विशेष रूप से मैं साक्षी जी आपको धन्यवाद देता हूं जो आपने राजकुमार शुक्ल के बारे में अपने विद्यालय परिवार के शिक्षकों को इस बात के लिए राजी किया जो वो इस
विषय पर में वेबिनार का आयोजन करें। मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं जो आपको गांधीयन थॉट्स को लेकर के एक प्राउड बिहारी ही नहीं, प्राउड इंडियन के रूप में इस देश में मशाल कायम रखें। मैं सबसे पहले अपनी बात शुरू करता हूं। क्या मैं ऑडिबल हूं? कोई दिक्कत तो नहीं है हमारी बात सुनने में? हाँ जी, ऑडिबल है, वेरी क्लियर। धन्यवाद। तो सबसे पहले मैं अपनी बात शुरू करता हूं क्लास 12 के फ्लेमिंगो बुक से, जिसके बारे में अभी मैम ने चर्चा किया था, और उसमें जो चैप्टर्स है इंडिगो, जिसके राइटर्स हैं बहुत ही बड़े लेखक लुईस फिशर साहब जी। लुईस फिशर साहब ने जो उस किताब में उस किताब में चैप्टर्स में जो तथ्य रखे हैं, उस तथ्य में गांधी, चंपारण और राजकुमार शुक्ल को लेकर के कुछ छोटी छोटी त्रुटियां हैं। उन त्रुटियों को पिछले 15 सालों से लाखों लाख बच्चे उसको ग्रहण कर रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं। और मैं अपने इस आज के स्पीच में स्टूडेंट्स को उन तथ्यों के अलग जो रियलिटी है उस गांधी चंपारण के, मैं उसकी ओर आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा। और मैं आशा करूंगा कि आपके विद्यालय परिवार इन तथ्यों को दूर करने में, ताकि हमारे जो आगे आने वाली पीढ़ी है उनको सही तथ्यों की जानकारी मिले, इसके लिए भारत सरकार से प्रयास करेगी। वो एक दूसरा विषय है। लेकिन मैं आपको, जैसे कि अभी मैम ने इंट्रोड्यूस किया था, जो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस आकर के 1950 में बम्बई पहुंचे थे, तो महात्मा गांधी को इससे पहले मैं चंपारण लाऊं, उनके एक व्यक्तित्व की ओर डीपीएस स्टूडेंट्स का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, जिसमें उन्होंने जब उनके राजनीतिक गुरु गोखले जी ने गांधी जी से को मना किया था, जो 1 साल तक आप इस भारत के किसी भी पब्लिक एक्टिविटीज में भाग नहीं लेंगे, आप किसी पब्लिक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। उन्होंने कहा था जो आप पहले इस भारत को देखिए, भारत के गांवों को देखिए, भारत के लोगों की नब्ज को टटोलिए, यहाँ की राजनीतिक समस्या का अध्ययन कीजिए। और गांधी जी उसके बाद कोलकाता, बम्बई, पूना, इलाहाबाद, कानपुर, शांति निकेतन में उन्हें जेबी कृपलानी से बात हुई थी। रविन्द्रनाथ टैगोर के साथ उन्होंने बहुत बड़ा इंटरेक्शन किया था, वहां पर कम्युनिटी किचन के बारे में बात शुरुआत की थी। गांधी जी का वो परिचय मैं आपसे कराना चाहता हूं जो बीएचयू के स्थापना दिवस समारोह 4 फरवरी 1916 को आयोजित था। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग्स वहां पर आने वाले थे। गांधी को भी लेक्चर सीरीज में इनवाइट किया गया था, और गांधी ने सबसे पहले 3 चीजों का उल्लेख किया था अपने इंडिया आने के बाद पहली पब्लिक मीटिंग में। वो उन्होंने कमेंट्स किया था, उन्होंने आलोचना किया था, क्योंकि उस दिन बनारस के गलियों में, बनारस के कुचों में, शहरों में हजारों हजार पुलिस को भर दिया गया था, और गांधी ने वायसराय पर अटैक किया था। जो क्या वायसराय इतने कमजोर हैं जो उन्हें बनारस आने के लिए इतने अधिक सिपाहियों की सहायता की जरूरत पड़ती है। गांधी ने दूसरा अटैक किया था, जो वाराणसी का मंदिर है उसके जो संकरी गली है वो काफी गंदे हैं। गांधी ने तीसरा अटैक किया था, जो प्रिंसली स्टेट्स जो मैसूर राजा के नेतृत्व में जो वहां पर जमा हुए थे, उन्होंने कहा था जो मुझे ऐसा लग रहा है जो मैं पेरिस के गलियों में घूम रहा हूँ जब मैं इन प्रिंसली स्टेट्स के ड्रेस और ऑर्नामेंट्स को देखता हूँ। गांधी जी के इन अटैक को मैं इसलिए उल्लेख करना चाहता हूं तो जो लोग गांधी के व्यक्तित्व के पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे उनको इस प्रकरण से काफी फायदा मिलेगा। गांधी ने अपनी पहली दस्तक में बता दिया था जो इस भारत में वो क्या करने जा रहे हैं, लेकिन उन्हें ऐसे जगहों की तलाश थी, उन्हें ऐसे लोगों की तलाश थी जो उनके इस अभियान में भाग लेते। प्लीज मैम, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूं कि जो आप ये मेरे पिक्चर्स को आप मेन पर ला करके, तो आपको अधिक सुविधा होगी मेरी बात सुनने में। आप अपने टेक्निकल पर्सन्स को बोलेंगे तो वो ऐसा कर सकते हैं, जो भी हो। हाँ, ये कर देंगे। ये जो भी हो, तो गांधी को ऐसे फोरम की तलाश थी जो वो वहां पर में उनकी रोपिंग कर सके, उनके आइडियाज को यहाँ फ्लोट कर सके, उनको सॉरी मेरी आवाज जा रही है? नहीं, ठीक है सर, ठीक है। तो हाँ। उनको यहाँ पर फोरम की तलाश थी, और उस फोरम को एक प्लेटफॉर्म दिया था चंपारण में राजकुमार शुक्ल ने। अब मैं आपको वापस राजकुमार शुक्ल के पास लाता हूं, और इससे पहले मैं अपने बच्चों को बताना चाहता हूं जो ये इंडिगो चंपारण जिसकी चर्चा अभी मैम ने अपने संबोधन में किया है, ये चंपारण और इंडिगो होता क्या था। इंडिगो एक प्लांट्स होता है जिसकी बहुत छोटा सा प्लांट होता है। उनके पत्तों को तोड़ करके
पानी में रख दिया जाता है करीब 1 सप्ताह 10 दिन तक, और उसके बाद उस 10 दिनों के बाद उस वो जो प्लांट्स के साथ पानी रहता है उसको फिर एक्सट्रैक्ट करके उससे इंडिगो निकाला जाता है। और मैम आप जो साड़ी पहनी हुई है उसके बॉर्डर पर में जो इंडिगो का कलर दिख रही है, या आपका और आपके जनरेशन से पहले लोग कपड़ों में कलर डालते थे, इंडिगो कलर डालते थे, इसकी काफी डिमांड थी पूरे वर्ल्ड में, और चंपारण का इंडिगो बहुत ही क्वालिटी पूर्ण माना जाता था। इसीलिए चंपारण में इंडिगो की जरूरत होती थी, लोग खेत में उपजाते थे। और जब उसका बिजनेस पोटेंशियल लोगों को समझ में आया, खास करके ब्रिटिश प्लांटर्स को, तो वो धीरे धीरे चंपारण में इंडिगो प्लांट्स बैठाते चले गए। और जब गांधी चंपारण पहुंचे थे तो लगभग 71 इंडिगो प्लांटर्स यहाँ पर ऑपरेट कर रहे थे। मैम आपके बच्चों को ये जानकारी होगी जो 1793 में यहाँ पर परमानेंट सेटलमेंट लागू हुआ था, और उसके बाद उससे पहले 1770 में ही बंगाल में फ्रेंच बिजनेसमैन लुई बन्नो ने वहां पर में इंडिगो प्लांट्स स्थापित किया था। उसके बाद 1778 में करैल ब्लूम ने बंगाल में किया था। उसके बाद 1782 में फ्रैंकिस ग्रांट ने पहली बार चंपारण में आकर के अपनी कोठी लगाई थी। फ्रैंकिस ग्रांट तिरहुत का कलेक्टर हुआ करता था और उसने अपने जॉब से अलग जाकर के प्लांट्स लगाई थी। फिर धीरे धीरे चंपारण के तुर्कोलिया में, राजपुर में, मोतिहारी में, अन्य जगहों पर में वो चंपारण के इंडिगो प्लांट बैठते चले गए थे। 30 मील्स का फासला उनका था, जो इतने आगे जाकर के चंपारण की जो जलवायु और मिट्टी थी, जो उसका एटमॉस्फेयर था और जो लैंड क्वालिटी थी, वो इंडिगो फार्मिंग के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती थी। लेकिन इंडिगो फार्मिंग के लिए उन्हें अब जमीन चाहिए थी, लैंड चाहिए थी। उन्होंने लैंड की व्यवस्था बेतिया राज से की। बेतिया राज से उन्होंने सेटलमेंट किया था, और सेटलमेंट करके उन्होंने जमीन ले ली थी कई सालों के लीज पर में, और उस जमीन में जिरात व्यवस्था के अंतर्गत में इंडिगो प्लांटर्स अपना इंडिगो लगाते थे। लेकिन इंडिगो लगाने के लिए उन्हें लोकल फार्मर्स की हेल्प की जरूरत होती थी, और लोकल फार्मर से वो बैल लेते थे, हल लेते थे, उनका लेबर लेते थे, लेकिन उसके बदले में उन्हें उनका पेमेंट प्रॉपर्ली नहीं करते थे। उन्हें अपने चंपारण के किसानों को काफी उनका एक्सप्लॉयटेशन होता था, कई तरह की उनके परेशानियां होती थी। और एक दूसरा जो सिस्टम था, ये जिरात सिस्टम था, जिसमें कि इंडिगो के प्लांटर्स अपने लैंड में खेती करवाते थे, और एक दूसरा सिस्टम जो था उसको असामी वार बोलते थे। असामी वार सिस्टम में जो फार्मर्स का लैंड होता था, उसी लैंड में इंडिगो की खेती करनी होती थी। और जैसा कि आपको जानकारी होगी, 1860 के आसपास में बंगाल में कि बहुत बड़ा एक रिवोल्यूशनरी हुआ था, विद्रोह हुआ था, जहां पर में कि वहां पर में जो इंडिगो फार्मर्स थे वो खेती नहीं करना चाहते थे। क्यों नहीं खेती करना चाहते थे, ये लोगों को, थोड़ी कम लोगों को जानकारी होती है, जो आखिर खेती करना क्यों नहीं चाहते थे। वहां के फार्मर्स इसलिए नहीं खेती करना चाहते थे, जो एक बार यदि किसी खेत में इंडिगो का पौधा लगा दिया गया तो वो कई सालों तक वहां वो लैंड बिल्कुल ही बैरन हो जाती थी, वहां किसी भी दूसरी खेती नहीं हो सकती थी। इसीलिए चाहते थे किसान जो अपने खेत में नील नहीं लगावे। दूसरी ओर जो इंडिगो प्लांटर्स थे, जो ब्रिटिश प्लांटर्स थे, वो जबरदस्ती किसान को इसके लिए बाध्य करते थे वो अपने खेत में नील लगावे। और यही एक पॉइंट था जो दोनों में विद्रोह होता था। यदि आप बंगाल के इंडिगो रिवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, नील दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, तो वहां पर मजिस्ट्रेट ने स्वयं लिखा है, जो किसान आकर के मेरे पास में ये बोलते हैं, जो मैं उस देश में चला जाऊंगा जहां पर किसी ने नील का नाम नहीं सुना हो, नील का पौधा नहीं दिखा हो, आप मेरी जान ले लीजिए, आप मुझे मार दीजिए, लेकिन इसके लिए मत कहिए जो मैं नील का पौधा। पर अब मार्मिक प्रकरण वहां हुआ है। दीनबंधु मित्र ने उसका नील दर्पण नाटक लिखा था, फिर उसका जेम्स लॉन्ग ने पब्लिकेशन किया था। ये एक बंगाल इंडिगो के साथ में उसकी एक हिस्ट्री के साथ काफी चीज जुड़ी हुई है। जब बंगाल में विद्रोह हुआ था तो वहां से इंडिगो प्लांटर्स धीरे धीरे बिहार और खास करके चंपारण चले आए थे, क्योंकि यहाँ पर लोगों में विद्रोह की भावना कम थी। लोग यहाँ पर कभी कभी विद्रोह करते थे, क्योंकि चंपारण की जो जमीन थी, चंपारण का जो लोग थे, वहां उनमें शिक्षा का अभाव था। वो कॉलोनियल गवर्नमेंट के आगे में कुछ भी बोलने के लिए विवश हो जाते थे। एक जगह जो रिपोर्ट मिलता है उसमें ये लिखा होता है मजिस्ट्रेट का, जो यहाँ से यदि एक डब्बा भी इंग्लैंड जो इंडिगो जाती है, उसमें किसान के खून सने हुए होते हैं। बड़ा ही मार्मिक, जिसको कि कॉलोनियल गवर्नमेंट के एक पार्ट ने एक्सेप्ट किया है इस चीज को, जो काफी एक्सप्लॉयटेशन होता था। 1857 का
1857 का रिवेलियन विद्रोह सबको आपको जानकारी होगी। उसके बाद यहाँ के फार्मर्स में थोड़ी सी चेतना जगी है और सबसे पहले बिहार के पंडौल में इंडिगो फार्मर्स के अगेंस्ट में एक विद्रोह हुआ है। हालांकि उस विद्रोह को दबा दिया गया था, लेकिन उसके एक साल बाद 1867 में चंपारण में एक लाल सरिया कोठी होती है। लाल सरिया कोठी का जो नील्हा होता है, जो इंडिगो प्लांटर्स था, उसका नाम मैकलोड था। उसे लोग किंग ऑफ इंडिगो प्लांटर्स बोलते थे। उसके अस्तबल में 120 हॉर्सेज हुआ करते थे और जब विद्रोह हुआ तो फार्मर्स ने उनके कोठी को आग लगा दिया, उनको काफी क्षति पहुंचाई। उसके बाद स्मॉल कॉज की कोर्ट की स्थापना हुई थी और फार्मर्स को जेल में डाल दिया गया था। लगभग 1200 फार्मर्स उससे प्रभावित हुए थे। लेकिन इसके बाद भी धीरे धीरे इंडिगो प्लांटर्स के अगेंस्ट में यहाँ पर में लोगों में विद्रोह होता था। विद्रोह का एक बड़ा कारण होता था जो इंडिगो प्लांटर्स रैयतों का काफी शोषण करते थे। यदि इंडिगो प्लांटर्स की बातों को फार्मर्स नहीं मानते थे तो उनको यहाँ गर्दन तक में एक नाली में उसको बांध दिया जाता था, उसमें इंसेक्ट्स को छोड़ दिए जाते थे। जो प्लांटर्स मनमानी नहीं उनकी मानते थे, उनके घर के आगे में गड्ढा खोद दिया जाता था। अनटचेबल्स को वहां बैठा दिया जाता था ताकि उनकी घर की महिलाएं बाथरूम जाने के लिए या वॉशरूम जाने के लिए नहीं निकल सकें। उनको जो गांव का कुआं होता था, वेल होता था, ड्रिंकिंग वाटर की व्यवस्था से बंद कर दिया जाता था। उनके ऊपर मारपीट होती थी, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया जाता था। उनको एक चेचक वाले घर में बंद कर दिया जाता था। जो हिंदू होते थे रिलीजियन फार्मर्स, उनको एक मुर्गी खाने में बंद करके उनको ठेस पहुंचा दी जाती थी। उनके धार्मिक भावना को भरी दोपहरी में उनके इसके सीने पे पत्थर रख दिया जाता था और इस तरह से उनके ऊपर कई तरह के इलीगल टैक्सेस लगाए जाते थे। इतिहास में दर्ज है लगभग 50 तरह के इलीगल टैक्सेस लगाए जाते थे। यदि किसी इंडिगो प्लांटर्स को घाव होता था तो उसका भी खर्चा वो लेता था फार्मर से। यदि किसी प्लांटर्स को नई गाड़ी खरीदनी होती थी, नया नाव खरीदना होता था, उसका भी पैसा वो प्लांटर से लेता था। इसी तरह का फेस्टिवल होता है तो उसका भी पैसा प्लांटर से लेता था। वो एक प्रकार से प्लांटर्स के प्रभाव में, उसके शोषण, उसके एक्सप्लॉयटेशन में चंपारण के फार्मर इतने अधिक आ गए थे कि वहां कोई शादी नहीं कर सकता है, कोई बच्चा पैदा नहीं कर सकता है, कोई भरपेट खाना नहीं खा सकता है, कोई अपना इलाज नहीं कर सकता है। वहां पर में जो उनके मवेशी थे, बैल थे, उस पर शोषण था। उनकी नदियों का वो पानी का उपयोग नहीं कर सकता है, तालाब के पानी का उपयोग नहीं कर सकता है। जंगल और बगीचा पर भी नीलों का कब्जा था। एक प्रकार से चंपारण के किसान त्राही त्राही कर रहे थे और इसी त्राही त्राही में एक सतवरिया नामक गांव में राजकुमार शुक्ल का जन्म होता है। वो एक, जैसा कि आपने कहा था, वो एग्रीकल्चर फार्मिस्ट थे। उनका जमीन होता है, वो खेती करते हैं, लेकिन गांव में रह करके उनका एक विजन, उनका एक विजडम ऐसा था जो वो लोगों की कठिनाई को समझते थे और उतने संवेदनशील थे जो लोगों की कठिनाई को दूर करने की बात भी सोचते थे। इस बीच में दो घटनाओं का उल्लेख मैं करना चाहता हूँ। एक जो तेल्हारा एक कोठी थी, उसके जो प्लांटर्स थे उसका नाम था ब्लूमफील्ड। ब्लूमफील्ड को फार्मर्स ने लाठी से पीट कर मार दिया था। जब उसका पोस्टमार्टम हुआ था तो उसकी हड्डी 36 जगह टूटी हुई पाई गई थी। वो एक जो ब्लूमफील्ड का मर्डर फार्मर्स ने किया था, इससे लोगों में एक डर पैदा हो गया था। आप 1908 में खुदीराम बोस जो मुजफ्फरपुर में बम कांड हुआ था, उसके बारे में आपके बच्चे और आप सब लोग जानते होंगे। इंडिगो फार्मर्स ने खुदीराम बोस और ब्लूमफील्ड के मर्डर को एक तरह से जोड़ने का प्रयास किया और वो एक और भी पुलिस डिप्लॉयमेंट चाहते थे। लेकिन 1906 में जो एक साठी नामक गांव में विद्रोह शुरू हुआ था, जिसके नायक, जिसके हीरो राजकुमार शुक्ल, शेख गुलाब और शीतल राय थे, उन लोगों ने एक बहुत बड़े रीजनल एरियाज में पूरे फार्मर्स को एकजुट करके इंडिगो प्लांटर्स के अगेंस्ट में एक विद्रोह खड़ा किया था। उतने दूर को उन्होंने खाली करा लिया था और एक तरह से चंपारण के किसानों को एक मैसेज दे दिया था, यदि यहाँ प्लांटर्स के साथ आपको रहना है तो सबसे पहले प्लांटर्स के जितने भी खराब काम हैं उनका विरोध करना पड़ेगा, उन्हें जरूरत पड़ने पर पीटना पड़ेगा। और पीटने के बाद WR गोडले, एक जो वहाँ के SDO हुआ करते थे, उन्हें जांच के लिए अधिकारी ने भेजा था। WR गोडले वहाँ ने काफी प्रो पीपुल या प्रो फार्मर्स रिपोर्ट दिया था और उसने स्पष्ट रूप से कहा था जो इंडिगो प्लांटर्स ही यहाँ पर में परेशानी कर रहे हैं फार्मर्स को। फार्मर्स इनोसेंट हैं, उनका कोई दोष नहीं है, लेकिन उन्हें उनके रिपोर्ट को भी पब्लिश नहीं किया गया था। हाउस ऑफ कॉमन्स में चंपारण की बातें उठी थी
लेकिन सरकार ने कहा जो नहीं, वहां इस तरह की कोई बात नहीं है। लेकिन राजकुमार शुक्ल इससे वो डरने वाले नहीं थे, मानने वाले नहीं थे। उनकी काफी पहुंच थी, वो हर एक गांव में जाते थे, किसानों से मिलते थे, उनकी समस्याओं पर बात करते थे। और यदि आपस में किसी किसान को आपस में कोई किसी तरह का झगड़ा होता था तो लोकल पंचायती भी करते थे। उस समय जो इंडिगो प्लांटर्स थे, उनको यह भी अधिकार था जो वो लोकल पंचायती करेंगे, छोटे मोटे मामलों में अपना एक जजमेंट देंगे, और एक तरह से वो लोकल मजिस्ट्रेट का भी काम करते थे। राजकुमार शुक्ल ने जब एक छोटी सी झोटिल अहिर नामक एक किसान को झगड़ा हुआ था तो उसने पंचायती किया था। उसके बदले में जो वहां पर बेलवा कोठी का प्लांटर्स था, उसका नाम था एसी एमन। एसी ओमन ने राजकुमार शुक्ल पर 1 रुपया का जुर्माना लगा दिया था। राजकुमार शुक्ल को काफी बेइज्जत किया था। इसके कुछ ही दिनों के बाद राजकुमार शुक्ल पर में एक और उनके घर के आगे में एक आलू का खेत था। राजकुमार शुक्ल वहां पर आलू लगाए हुए थे। एमन का आदमी पहुंच करके उसने कहा जो एमन आधा आलू मांगे हैं। राजकुमार शुक्ल ने कहा जो घर के सामने में जो खेत होता है उसका आलू का बंटवारा नहीं कर सकता है नीलहा। लेकिन एमन को लगा यदि एक राजकुमार शुक्ल नहीं देगा तो बाकी कोई किसान हमारी बात को नहीं मानेंगे। उसने पलकधारी लोहार नामक एक ग्रामीण से राजकुमार शुक्ल पर में इसलिए मुकदमा करवा दिया। पलकधारी लोहार ने कहा जो ये मुझे कोठी में काम करने से रोकता है और मेरे खेत में मछली मार लिया है, जबकि वो झूठा मुकदमा था। लेकिन एसी एमन ने मजिस्ट्रेट से मिल भगत करके राजकुमार शुक्ल को 21 दिन का जेल डाल दिया। जब जेल से बाहर निकले तो जिस प्रकार चाणक्य ने अपनी शिखा पर हाथ रख करके मौर्य वंश के बारे में शपथ लिया था, उसी प्रकार से राजकुमार शुक्ल ने शपथ लिया तो जब तक इस धरती से, इस चंपारण की धरती से हम नीलों को भगा नहीं देंगे, हम चैन से नहीं बैठे। उसके बाद वो गांव गांव घूमते रह गए। ऐसा लगा, इतिहासकार लिखते हैं, जो ऐसा लग रहा है जो उनके पैरों में चकरघिन्नी लग गई हो। वो पूरे चंपारण के गांव गांव घूम करके जो किसान थे उनको उन्होंने गोलबंद किया है, उनको बताया है जो आपका अधिकार क्या है, ये नीले प्रकार मनमानी कर रहे हैं, कैसे इनका विरोध करना चाहिए। और उधर ब्रिटिश गवर्नमेंट और जो इंडिगो प्लांटर्स थे वो भी राजकुमार शुक्ल को टारगेट बना करके रखे हुए थे, लेकिन राजकुमार शुक्ल को इसकी कोई परवाह नहीं थी। उन्होंने अपनी पूरी जमीन को बंधक लगा दिया। उन्होंने उनके ऊपर कई तरह के अत्याचार हुए, उनके परिवारजनों ने अत्याचार सहा। बाद में एसी एमन ने तो उनके घर को जला डाला है, उनके घर को नष्ट नाबूद कर दिया है, उनके खेत को लुटवा दिया है। लेकिन राजकुमार शुक्ल उससे डरने वाले नहीं थे। इसी बीच में एक महेश्वर प्रसाद का आविर्भाव होता है जो लोकल पटना से निकलने वाले एक बिहारी अखबार हुआ करता था, उसके संपादक थे। महेश्वर प्रसाद 1911 में चंपारण आते हैं। वहां के लोकल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से मिलकर के कहते हैं तो यहाँ पर चंपारण के किसानों की समस्याओं का हम डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। महेश्वर प्रसाद को सैक कर दिया जाता है, उनके अखबार को भी बंद कर दिया जाता है। पूरे भारत में शायद ये पहली घटना थी जब इंडिगो प्लांटर्स और ब्रिटिश ऑफिसर्स ने किसी एक अखबार को बंद करवा दिया हो। उसके बाद राजकुमार शुक्ल का संपर्क उसी समय से प्रताप अखबार से होता है, जिसके संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी होते हैं। प्रताप अखबार कानपुर से निकलता है और ये रैयतों पर में जब प्लांटर्स मुकदमा करते थे तो राजकुमार शुक्ल उनके मुकदमे की पैरवी के लिए कोर्ट में जाते थे। इस प्रकार राजकुमार शुक्ल बेतिया आने लगे, मोतिहारी आने लगे, मुजफ्फरपुर आने लगे, दरभंगा और पटना जाने लगे। और जितने भी वकील थे उस समय में, मोतिहारी में गोरख प्रसाद थे, मुजफ्फरपुर में रामदयालु बाबू थे, गया प्रसाद सिंह थे, रामनवमी बाबू थे, दरभंगा में ब्रजकिशोर प्रसाद थे, पटना में राजेंद्र बाबू थे। इन सब लोगों के साथ इनकी घनिष्ठता बढ़ती चली जाती है और एक प्रकार से राजकुमार शुक्ल की एक तरफ जहां किसानों के साथ उनका समन्वय होता है, दूसरी तरफ जो समाज के बुद्धिजीवी होते हैं जिसमें कांग्रेस के लीडर्स होते हैं, पत्रकार होते हैं जिसमें पीर मोहम्मद मुनीस और हरिवंश साहब जो पत्रकार हैं, जो कानपुर के प्रताप के लिए लिखते हैं, उनसे उनका संपर्क होता है। तो राजकुमार शुक्ल एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो गांधी के आने से पहले चंपारण का जो लोकल विद्रोह था, जो लोकल जो किसानों की समस्या थी, उसको उसने रेज करके लोकल से रीजनल लेवल पर ला दिया था और चंपारण के बारे में अब बात होनी शुरू हो गई थी। ब्रजकिशोर प्रसाद ने सबसे पहले चंपारण राजकुमार शुक्ल को इनवाइट किया था, जो वो बांकीपुर में और छपरा में जो कांग्रेस की रीजनल कमेटी थी
वहां आकर के वो अपनी बात कहें। राजकुमार शुक्ल को पदार्थ से हिंदी नहीं आती थी, आप सब जानते हैं। राजकुमार शुक्ल थोड़े कम पढ़े लिखे थे, उनको कैथी आती थी। और वहीं पर मैं आपको फिर से लुईस फिशर की ओर ले जाना चाहता हूँ। लुईस फिशर ने अपने किताब में लिख दिया जो राजकुमार शुक्ल इलिटरेट थे। मैंने स्वयं उनकी पूरी की पूरी डायरी को पढ़ा है। उनकी डायरी को यदि आप अपने स्टूडेंट्स को दिखाना चाहें तो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। ये उनकी डायरी है जो राजकुमार शुक्ल लिखा करते थे। मैंने उसकी पूरी डायरी का ट्रांसलेट किया है, अनुवाद किया है। तो एक प्रकार से राजकुमार शुक्ल इलिटरेट नहीं थे। जब लुईस फिशर के चैप्टर्स को स्टूडेंट्स पढ़ते हैं तो उनके मन में राजकुमार शुक्ल के प्रति एक गलत मैसेज जाता है, जो वो इलिटरेट थे। वो इलिटरेट नहीं थे। यदि आज हम आपसे पूछेंगे क्या आपको चाइनीज नहीं आती है, जर्मनी नहीं आती है, क्या आपको अंग्रेजी नहीं आती है, संस्कृत नहीं आती है, मराठी या गुजराती नहीं आती है, तो आप इलिटरेट नहीं हो सकते हैं, क्योंकि किसी भी आदमी को 1, 2, 3, 4 भाषाएं आ सकती है। राजकुमार शुक्ल जब बांकीपुर और छपरा में कांग्रेस के रीजनल मीटिंग में जाते हैं तो वो अपनी टूटी फूटी भोजपुरी और टूटी फूटी हिंदी मिला करके कांग्रेस के स्टेज पर में चंपारण के किसानों की बात को रखते हैं। और उसी समय में उन्हें लखनऊ में एक कांग्रेस का अधिवेशन होने वाला है, 21वां अधिवेशन दिसंबर 26 से 31 तारीख तक में। 81 प्रतिनिधिमंडल के रूप में राजकुमार शुक्ल लखनऊ पहुंचते हैं, ब्रजकिशोर प्रसाद के साथ वहां पर में जाते हैं। लेकिन इससे पहले जब राजकुमार शुक्ल जब बिहारी अखबार बंद हो जाता है तो राजकुमार शुक्ल का आना जाना कानपुर होता है। कानपुर में वो गणेश शंकर विद्यार्थी से मिलते हैं। गणेश शंकर विद्यार्थी ही राजकुमार शुक्ल को कहते हैं, क्योंकि उस समय तक अखबार में चंपारण की घटनाओं के बारे में बहुत ही सीरीज से निकलना शुरू हो गया था और गणेश शंकर विद्यार्थी को भी चंपारण के सारी चीजों के बारे में जानकारी हो गई थी। उन्होंने कहा यदि आपको चंपारण के किसानों को शोषण से मुक्त कराना है तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए हैं, गांधी जी को चंपारण ले जाइए। गांधी जी इन चीजों में अभ्यस्त हैं, उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में ऐसी ही लड़ाई लड़ी है। उसके बाद जब राजकुमार शुक्ल लखनऊ पहुंचते हैं और उनको पता चलता है जो गांधी जी इस अधिवेशन में आए हैं, तो वो ब्रजकिशोर प्रसाद को लेकर के गांधी जी के कैंप में जाते हैं, गांधी जी को पूरी बात बताते हैं। लेकिन गांधी जी को कुछ भी पता नहीं होता है, जो चंपारण क्या है, इंडिगो क्या होती है, क्यों शोषण करते हैं। गांधी जी ने मना कर दिया कि मुझे इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। जबकि उस कांग्रेस अधिवेशन में एक रिजोल्यूशन पास करने का हुआ था, जो प्रस्तुत करना था, विचार करना था कांग्रेस को, जो चंपारण में किसानों की समस्याओं के जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया जाए। राजकुमार शुक्ल ने जब ये सुना जो गांधी जी इसके लिए राजी नहीं हो रहे हैं, तो सीधे उनके पैर पर गिर गए और उन्होंने कहा जो आप स्वयं अपनी आंखों से चलकर चंपारण को देख लीजिए। फिर भी गांधी ने मना कर दिया, जो मुझे कुछ भी पता नहीं है चंपारण के बारे में। राजकुमार शुक्ल ने कहा जो आप इस अधिवेशन में इस प्रस्ताव को रखिए। गांधी ने कहा मैं नहीं रखूंगा इस प्रस्ताव को, मुझे कुछ भी जानकारी नहीं है, आप स्वयं इस प्रस्ताव को रखिए। और जब राजकुमार शुक्ल प्रस्ताव नंबर 10 था, वो 10वां प्रस्ताव था और ब्रजकिशोर प्रसाद ने उस प्रस्ताव को रखा, राजकुमार शुक्ल ने उसका समर्थन किया था। और कांग्रेस के स्टेज पर में पहली बार राजकुमार शुक्ल ने एग्रीकल्चरिस्ट फार्मर्स को, किसान की समस्याओं को रखा था, वो भी टूटी फूटी भोजपुरी में। इससे पहले कांग्रेस एक एलिट क्लास का था, जो शहरी वर्ग का था, शहरी वर्ग की समस्याओं के ऊपर में होता था और कभी कभी एप्लीकेशन किया करता था। लेकिन पहली बार राजकुमार शुक्ल ने कांग्रेस को एक नई दिशा दी थी, जो आपको यदि अपना बेस बनाना है, आपको समस्याओं के ऊपर बात करनी है, तो आप गांव के लोगों की समस्याओं पर बात करिए, आप किसानों के शोषण की समस्याओं पर बात करिए। पहली बार एक नया विंडो खोला था राजकुमार शुक्ल ने कांग्रेस में अधिवेशन में। लेकिन वो उनका एक टारगेट ये था जो गांधी को चंपारण ले जाना है। और राजकुमार शुक्ल का इतिहास में इतना बड़ा स्थान इसलिए भी है जो उनमें ग्रेट परसुएशन स्किल्स थी। जब गांधी वहां से कानपुर जाते हैं, राजकुमार शुक्ल उनके पीछे पीछे जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ से थोड़ी ही दूर है चंपारण, आप चलिए हमारे साथ। गांधी ने कहा जो ठीक है, हम कभी देखेंगे। उसके बाद गांधी वहां से साबरमती आश्रम जाते हैं, राजकुमार शुक्ल फिर पीछे पीछे पड़ते हैं। गांधी वहां जाकर के उनको आश्वासन दे देते हैं जो हम देखेंगे, कुछ करेंगे। लेकिन वो मानने वाले नहीं होते हैं। वो जब यहाँ पर में वापस आते हैं तो राजकुमार शुक्ल को 22 फरवरी राजकुमार शुक्ल ने गांधी को एक बहुत ही मार्मिक चिट्ठी लिखी है। उस चिट्ठी को यदि पढ़ेंगे तो आपको उसका अर्थ ये लगेगा जो राजकुमार शुक्ल को जो इंडियन कल्चर है उसके बारे में कितनी जानकारी है, और ये भी मालूम होगा जो राजकुमार शुक्ल को पूरे वर्ल्ड में क्या हो रहा है इसके बारे में जानकारी है। वो शुरू करते हैं वहीं से। तो जिस मामले को टॉलस्टॉय सिर्फ एक थ्योरेटिकली करके रह गए थे, उसे आपने कार्य रूप में परिणत कर दिया है। इसका मतलब उन्हें ये पता था जो टॉलस्टॉय वर्ल्ड के स्टेज पर में क्या कर रहे हैं। राजकुमार शुक्ल आगे लिखते हैं जो जिस प्रकार रामचंद्र जी के आने से
अहिल्या का उद्धार हो गया था। हमारे चंपारण की 19 लाख प्रजा महात्मा गांधी जी आपके इंतजार में है। जो आप आएंगे तो हमारा भी उद्धार हो जाएगा। अब ये देखिए, जो ये 1917 के फरवरी माह में राजकुमार शुक्ल ने लिखा है गांधी को चिट्ठी, और यदि उस चिट्ठी को आप पढ़ेंगे तो लगेगा जो जैसे उन्होंने गांधी के पूरी कथा को गांधी के आने से पहले ही उसने डॉक्यूमेंटेड कर दिया हो, जो गांधी आएंगे और यहाँ पर लोगों का उद्धार हो जाएगा। गांधी को उन्होंने फिर से चिट्ठी लिखना शुरू किया। गांधी ने एक बार लिखा, जो हम मार्च में आ रहे हैं, 7 मार्च को आ रहे हैं कलकत्ता, आप हमसे कलकत्ता का आकर के मिलिए। लेकिन वो चिट्ठी राजकुमार शुक्ल को लेट से पहुंची। जब राजकुमार शुक्ल जब तक कलकत्ता पहुंचे तो गांधी वहां से जा चुके थे। दूसरी फिर गांधी चिट्ठी लिखते हैं, जो हम अप्रैल में 8 तारीख को पहुंचने वाले हैं, हम बोस जी के यहाँ हम रुकेंगे। भूपेंद्र बोस जो उस समय में वेस्ट बंगाल के कांग्रेस के अध्यक्ष थे, वहां पर आकर के रुकेंगे, आप भी आकर के मिलिए। जैसे ही इनको ये मैसेज मिला, ये 5 अप्रैल को राजकुमार शुक्ल को ये मैसेज मिला है, वो अपनी पत्नी को लेकर के जवाहरलाल साह के मकान में रखती हैं, क्योंकि उनको डर होता है तो यदि हम गांधी को बुला करके लाएंगे तो ये जो अंग्रेज ऑफिसर्स और इंडिगो प्लांटर्स मेरे पीछे हाथ धो करके पड़े हुए हैं, वो हमसे और खफा हो जाएंगे, और यदि हम नहीं मिलेंगे तो मेरे परिवार वालों पर ये कहर ढाएंगे। इसलिए उसने अपनी पत्नी को गांव से ले जाकर के बेतिया में रख दिया। 135 रुपया उनके पास में था, वो आकर के मुजफ्फरपुर आते हैं, वो पैसा भी वो जमा कर देते हैं, और कुछ 16 रुपया लेकर के वो जाते हैं कलकत्ता के लिए चलते हैं। वहां पर में जो एक मारवाड़ी थे, उनकी माँ का देहांत हो गया था, और वो डेड बॉडी को लेकर के सिमरिया जा रहे थे। राजकुमार शुक्ल पैसा बचाने के लिए उसी डेड बॉडी उसी ट्रक पर बैठ के सिमरिया आते हैं। वहां से वो ट्रेन पकड़ के हावड़ा पहुंचते हैं, कलकत्ता आते हैं। जब वो पहुंचते हैं भूपेंद्र जी के घर पर में, तो उनको मालूम होता है जो गांधी लाने के लिए गाड़ी गई हुई है वो आते ही होंगे। जब गांधी वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं राजकुमार शुक्ल पहले से यहाँ उपस्थित हैं। वो बहुत ही प्रसन्न होते हैं और वो कहते हैं ठीक है हम चलेंगे। और फिर वहां पर में कार्य खत्म करके एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग थी। गांधी को इस बात का दुख भी था, जो कांग्रेस ने जब रेजोल्यूशन पास कर दिया तो फिर कांग्रेस ने इसको टेकअप नहीं किया, क्योंकि उसमें चार वार्ड थे कांग्रेस के, चाहे वो मदन मोहन मालवीय हो या अन्य नेता हो, वो अपने अपने कामों में व्यस्त थे, किसी को भी चंपारण की सुध नहीं थी। गांधी ने कहा हम चंपारण जाएंगे, और वो 9 तारीख को उनके बेटा हरिलाल ने 2 टिकट कटाया। राजकुमार शुक्ल को ने गांधी को लेकर के 3:30 पर ट्रेन में बैठते हैं, तो राजकुमार शुक्ल को ऐसा लगा जो उनका सपना पूरा होने वाला है, क्योंकि महात्मा गांधी अब चंपारण के लिए जा रहे हैं। 10 अप्रैल 1917 को महात्मा गांधी बांकीपुर आते हैं। रास्ते में गांधी जी एक चीज पूछते हैं जो कि बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी है, जो भाई वहां पर में जो ये लैंड डिस्प्यूट है उसका लीगल एस्पेक्ट्स क्या है। राजकुमार शुक्ल ने अपने तरह से उनको समझाने का प्रयत्न तो किया, लेकिन गांधी से सेटिस्फाई नहीं हुए। गांधी को ये विश्वास नहीं होता था जो राजकुमार शुक्ल जिन कठिनाइयों का जिक्र कर रहे हैं, क्या ये संभव है इस धरती पर में जहां पर ब्रिटिश का शासन है, और ब्रिटिश बार बार अपने लीगल जो उनका काम है या उनके कॉन्सेप्ट है या उनका जो इम्प्लीमेंटेशन है, इसका ब्रांडिंग पूरे विश्व में किए हैं। तो गांधी को हमेशा शक होता था जो गांधी ये राजकुमार शुक्ल पूरी बात नहीं कह पा रहे हैं। वो राजेंद्र बाबू के घर पर गए हैं, वहां पर एक अलग घटनाक्रम होती है, उसको लेकर के काफी लोग उस पर लिखते हैं। फिर वहां से मजरुल हक पर गए हैं, क्योंकि उनके साथ इंग्लैंड में पढ़ते थे मजरुल हक ने कहा था आप मुजफ्फरपुर जाइए। उनको लगा था जो मुजफ्फरपुर में अब हम कहाँ जाएंगे, क्योंकि राजकुमार शुक्ल के बारे में गांधी के मन में यह भी शक हो गया था जो इसका संगठन शक्ति बहुत कमजोर है। कुछ समय तक चूंकि पटना में तो कोई रिसीव करने के लिए नहीं आए थे गांधी को। फिर वो मुजफ्फरपुर पहुंचते हैं, वो जेबी कृपलानी को टेलीग्राम करते हैं। जेबी कृपलानी जब रात में स्टेशन पर गांधी पहुंचते हैं तो जेबी कृपलानी अपने स्टूडेंट्स के साथ रिसीव करने के लिए आते हैं। गांधी थोड़े खुश होते हैं। पहली बार जब जेबी कृपलानी के स्टूडेंट्स वहां पर जब ट्रेन पहुंचती है मुजफ्फरपुर में, तो वो गार्ड से पूछने जाते हैं जो क्या यहाँ पर में इस ट्रेन से कोई गांधी आए हैं। गार्ड ने कहा जो मैं किसी गांधी को नहीं जानता हूँ, मुझे ये पता इस ट्रेन से कोई गांधी आए। जब राजकुमार शुक्ल को लगा जो कुछ लोग गांधी को खोज रहे हैं, तो उन्होंने कहा तो यही तो महात्मा जी हैं। ये कहने का मेरा अर्थ ये है जो राजकुमार शुक्ल ने ही पहली बार मुजफ्फरपुर स्टेशन पर में गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। उसके बाद फिर महात्मा दोनों आदमी कृपलानी जी आते हैं जीबी भूबियार ब्राह्मण कॉलेज, जो आज एलिस कॉलेज के नाम से जाता है, मलकानी के घर पर रुकते हैं। फिर वो गया प्रसाद आदि से जो वहाँ के मुजफ्फरपुर के वकील हैं, गांधी इसको फिर से वेरीफाई करते हैं जो राजकुमार शुक्ल जो कह रहे हैं क्या ये सही है, क्या ये इस तरह की घटना हो रही है चंपारण में। जब वकील उनको कहते हैं जो जितना चीज राजकुमार शुक्ल कह रहे हैं उससे अधिक वहां पर में हो रहा है, तब गांधी सेटिस्फाई हो जाते हैं
और तब कहते जो ठीक है अब हम इसके बारे में सोचेंगे। जब गांधी को लगा जो अभी तक क्या हुआ है, उन्होंने वकीलों ने समझाया जो यहाँ के प्लांटर्स पर में जब रैयत को गुस्सा आता है तो उसका एप्लीकेशन देते हैं उसके अगेंस्ट में, उसको उससे भी कोई समस्या का समाधान नहीं होता है तो उस मारपीट करते हैं, और मारपीट करने के बाद रैयतों पर भी फिर से वो आता है परेशानी, उनको जेल में डाल दिया जाता है, पनिश होते हैं। गांधी ने कहा जो इस लड़ाई को हम कोर्ट में जाकर के नहीं जीत सकते हैं। क्यों नहीं जीत सकते हैं? जो कोर्ट भी ब्रिटिश वहां पर जज है और इंडिगो प्लांटर्स भी ब्रिटिश है, इसलिए दोनों मिल करके इसका कोई भी समाधान नहीं निकाल सकता है। वहां पर में 12 तारीख को ही गांधी विल्सन से मिलते हैं जो बिहार इंडिगो प्लांटर्स एसोसिएशन का सेक्रेटरी होता है। लुइस फिशर ने अपनी किताब में लिख दिया है जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन का वो सदस्य हुआ करता था। ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन एक अलग संस्था थी और बिहार इंडिगो प्लांटर्स एसोसिएशन एक अलग संस्था थी। इसी का मैंने विरोध किया था, जो लोग कंफ्यूज होते हैं ब्रिटिश लैंडलॉर्ड सिस्टम से। गांधी उसके विल्सन से मिलने के लिए गए हैं। विल्सन ने कहा जो आपको नहीं आना चाहिए था यहाँ पर में हम आपका कोई मदद नहीं करेंगे। गांधी नहीं माने। उसने कमिश्नर एल.एफ. मुर्शीद को एप्लीकेशन दिया जो हम आपसे मिलना चाहते हैं। एल.एफ. मुर्शीद ने 13 तारीख का समय दिया था और जब वो गांधी मिलने के लिए वहां पहुंचे तो वहां पर कलेक्टर वेस्टर्न भी मौजूद थे। एल.एफ. मुर्शीद ने गांधी को बहुत ही डांटा है, एक तरह से कहिए तो उनको बेइज्जत किया है। जो आपको यहाँ किसने बुलाया है? आपके आने से यहाँ पर में जो किसान की जो वहां पर विद्रोह हो जाएगा, वहां पर कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो जाएगी, आप यहाँ से तुरंत चले जाइए। गांधी को लगा जो अब ये बातें सही कह रहा है। अब गांधी को यह भी लगा जो ये लोग मुझे अरेस्ट करेंगे। गांधी के अंदर का जो नेता था वो जाग उठता है। गांधी ने सोचा यदि अरेस्ट होगा तो हम मुजफ्फरपुर में क्यों अरेस्ट हों, हम चंपारण जाकर के अरेस्ट हों, ताकि लोगों में ये मैसेज जाए जो काठियावाड़ गुजरात से आया हुआ एक नेता यहाँ के चंपारण के रैयतों के विद्रोह के लिए खुद को जेल भेज रहा है। गांधी 15 तारीख को 3 बजे रामनवमी प्रसाद, गोरख प्रसाद और धरणीधर प्रसाद के साथ जब चंपारण में पहुंचते हैं तो वहां पर लोगों की आंखें खिल जाती है। वो गोरख प्रसाद के घर पर जाते हैं और उसके दूसरे दिन 16 अप्रैल को वो जसौली पट्टी जाते हैं। वहां पर केम्प नामक एक नीलाहा के साथ दुर्व्यवहार हुआ था और उसको लेकर के हिकॉक कलेक्टर ने वहां की महिलाओं के साथ बहुत ही व्यभिचार किया था। गांधी जी वहां जाना चाहते हैं, बीच में चंद्रैया में उनको रोक लेता है। अयोध्या प्रसाद तिवारी कलेक्टर का मैसेज लेकर के जाता है जो आप वापस चलिए, कलेक्टर आपको बुला रहे हैं। गांधी गोरख प्रसाद के घर पर आते हैं और गांधी अपनी बात लिखते हैं कलेक्टर को जो मैं चंपारण में आकर के यहाँ पर कानून व्यवस्था को भंग करने की मेरा कोई इरादा नहीं है। मैं ये सिर्फ जानना चाहता हूँ कि यहाँ के जो रैयत हैं, जो फार्मर्स हैं, किसान हैं, उनको क्या परेशानी है और इससे मुझे कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन कलेक्टर उनकी बातों को नहीं माने हैं और 18 अप्रैल को दिन के 12:30 बजे एसडीओ जॉर्ज चंदर की अदालत में उपस्थित होने के लिए गांधी को सम्मन आया है। गांधी ने 17 अप्रैल के रात में ही सारे लोगों को चिट्ठी लिखी है। एक चिट्ठी उसने वायसराय के सेक्रेटरी मैफी साहब को भी लिखी है और उस चिट्ठी में उन्होंने उल्लेख किया है जो ब्रिटिश सम्राट मुझे दक्षिण अफ्रीका के कार्यों के लिए कैसर हिंद की उपाधि देती है, लेकिन ब्रिटिश सम्राट का एक छोटा सा कमिश्नर मुझ पर शक करता है जो मैं यहाँ रैयतों को बहकाने के लिए आया हूँ। मैं अपना ये कैसर हिंद की उपाधि वापस करता हूँ। जैसे ही ये चिट्ठी पहुंचती है पूरा ब्रिटिश सम्राट हिलने लगता है और सारे एसडीओ जॉर्ज की चंदर की अदालत में जब गवर्नर ये गांधी पहुंचते हैं उससे पहले 4000 किसान यहाँ पर आ जाते हैं और उनको जब ये पता चलता है जो गांधी अरेस्ट होने के लिए यहाँ आ रहे हैं तो उनको लगा जी ये क्या माजरा है जो बाहर का आदमी मेरे कॉज के लिए अरेस्ट हो रहा है। मैं यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपके स्टूडेंट से, हम अपने स्टूडेंट से, जो लीडरशिप क्या होती है, लीडरशिप वो नहीं होती है जो हम अपनी बात जनता पर इम्पोज देंगे। लीडरशिप वो होती है जो जनता की बात को लीडर्स अडॉप्ट करता है। गांधी ने चंपारण में एक बड़ा मैसेज दिया था और जब उनको लगा जो हमारा एक्सेप्टेंस जनता में हो रहा है तो गांधी काफी खुश हो गए थे। गांधी ने रास्ते में पूछा था जब वो कोर्ट जा रहे थे धरणीधर बाबू से, जो हम जेल चले जाएंगे तो आप लोग क्या करेंगे? पहली बात तो उन्होंने कहा जो आप जब जेल चले जाएंगे तो हम भी अपने अपने वापस घर चले जाएंगे। गांधी थोड़े से उदास हो गए थे। फिर दोबारा उन्होंने कहा जो यदि आप जेल जाएंगे तो हम एक चेन बनाएंगे, आप जब अरेस्ट होंगे तब हमारे लीडरशिप में काम चलेगी, जब हम अरेस्ट होंगे तो इसके बाद के लीडरशिप में काम करेगी। गांधी ने कहा जो अब मुझे यह युद्ध जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। जब वो पहुंचते हैं तो 4000 जब जनता वहां कोर्ट में आ जाती है तो मजिस्ट्रेट परेशान हो जाता है, उन्हें मुख्तार खाने में रुकने के लिए कहता है। गांधी फिर से कोर्ट में आते हैं और जब उन पर कहता है जो आपने धारा 144 का विरोध किया है, आपने उसको तोड़ा है, तो गांधी ने कहा जो हमने कलेक्टर को तो सारी बातें लिख दिया था,
एसडीओ ने कहा जो इस यहाँ पर मेरे डॉक्यूमेंट्स में वो चिट्ठी नहीं है। गांधी ने फिर से अपनी चिट्ठी पढ़ दिया था, जो ये हमारे और कलेक्टर के और एडमिनिस्ट्रेटर के बीच में मतभेद है। एडमिनिस्ट्रेटर यह समझ रहे हैं जो हम यहाँ पर लोगों को बहकाने के लिए आए हैं, जबकि मैं ये समझ रहा हूँ जो मेरा ये अधिकार बनता है जो मैं अपने देश में यहाँ पर मैं लोगों की समस्याओं को समझूं, और ये मेरे अधिकार को कमिश्नर नहीं रोक सकते हैं। एसडीओ ने कहा जो हमको समझ में नहीं आई जो आप क्या बोल रहे हैं, क्या आप ये अपना अपराध स्वीकार करते हैं? गांधी को लगा जो हम बेकार का समय नष्ट कर रहे हैं। गांधी ने कहा ठीक है, हम अपना अपराध स्वीकार करते हैं। अब तो बहुत मुश्किल हो गई एसडीओ को, चूंकि अब तक जो उसके सामने में जो लोग आते थे वो अपने हाथ जोड़कर कहते थे हुजूर मैंने कोई अपराध नहीं किया, मुझे माफ कर दिया जाए। ये एक पहला व्यक्ति है जो कह रहा है जो हाँ मैं अपराध किया हूँ, और यदि आपको लगता है जो अपराध किया हूँ, गांधी ने अपने स्टेटमेंट में कहा था तो ये मैं आपके कानून को, यदि आपको लगता है जो मैं आपके कानून को तोड़ रहा हूँ तो आपको ये लग सकता है, लेकिन मैं आपके कानून से ऊपर, मैं ईश्वर के, मैं अपने विवेक से मैं ये बात कर रहा हूँ। गांधी ने पहली बार कोर्ट को बताया जो मैं आपका कानून मेरे विवेक से छोटा है, और यह सेंटेंस पूरी ब्रिटिश कॉलोनियल सिस्टम पर एक बड़ा अटैक था, जो जिसमें ये कहा गया था जो आपकी आइडियोलॉजी बहुत ही कमजोर हो चुकी है भारत में। और वही इसीलिए कहा जाता है जो गांधी ने उसी कोर्ट में सत्याग्रह किया था, इसलिए भी कहा जाता है जो गांधी ने उसी कोर्ट में पूरे ब्रिटिश साम्राज्य को हटाने के लिए यहाँ से फ्रीडम स्ट्रगल की शंखनाद किया था उसी कोर्ट में। जब गांधी को उसको कोर्ट को समझ में नहीं आया तो उसने कहा जो आप यदि अभी चले जाएंगे चंपारण छोड़ करके तो हम आप पर से मुकदमा वापस ले लेंगे। गांधी ने कहा जो अभी की क्या बात बोलते हैं, यदि आप हमको जेल भेज दीजिएगा तो जेल से मैं वापस आऊंगा तो इसी चंपारण में अपना घर बनाऊंगा। अब तो एसडीओ और परेशान हो गया, उसने कहा ठीक है हम इसको अभी मुलतवी करते हैं, अभी हम रोकते हैं, हम 3 बजे फिर बैठेंगे। लुईस फिशर ने यहाँ भी एक गलती की है। लुईस फिशर ने लिख दिया अपनी किताब में अपनी उसमें जो उसने एसडीओ ने कहा था जो आप 3 बजे हम फिर बैठेंगे, तब तक के लिए आप जमानत ले लीजिए। ये कोर्ट की प्रोसीडिंग्स ऐसे नहीं होती है। यदि जज ने कोर्ट को प्रोसीडिंग्स को रोका है तो इसके लिए जमानत लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। यदि हम प्रोसीडिंग्स को रोकेंगे तब हम जमानत के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लुईस फिशर यदि चंपारण जाते या कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को ध्यान से पढ़ते तो वो इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकते थे। जब वो 3 बजे के लिए कोर्ट को रोका जाता है तो गांधी एसपीओ से वहां पर में एसपी से मिलने जाते हैं जो कभी दक्षिण अफ्रीका में रह चुका था। एसपी ने कहा जो आपने मुझसे क्यों नहीं कहा? गांधी ने कहा हम तो कमिश्नर से मिल लिए थे, आपका कमिश्नर मेरी बात को समझने के लिए तैयार नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। फिर वो 3 बजे कोर्ट बैठती है। उसने कहा जो हम आपको छोड़ सकते हैं, आप 100 रुपया का हमको जमानत दीजिए। गांधी ने कहा जो मेरे पास 1 रुपया नहीं है, हम आपको जमानत नहीं ले सकते हैं। उसने कहा जो किसी आदमी को खड़ा कीजिए। गांधी ने कहा मेरे पास कोई आदमी नहीं है। एक तरह से गांधी ने उस एक दिन में 18 अप्रैल को ही पूरी ब्रिटिश न्याय व्यवस्था को कटघरे में लाके खड़ा कर दिया था। और बाद में गांधी ने अपने ऑटोबायोग्राफी में इसी चीज का उल्लेख किया था जो ब्रिटिश सरकार ने मुझ पर क्या मुकदमा चलाएगी। ब्रिटिश सरकार ने स्वयं अपने पर मुकदमा चला ली थी उस दिन 18 अप्रैल को, और इसीलिए 18 अप्रैल का दिन सत्याग्रह का दिन माना जाता है और वही चंपारण का शंखनाद का दिन भी माना जाता है। गांधी जब उनको 3 दिन के बाद हुआ जो हम आपको मुकदमा सुनाएंगे, आप जजमेंट सुनाएंगे, आप बाहर मत जाइए। जैसे ही गांधी की चिट्ठी मिली थी वायसराय को, पूरी ब्रिटिश सरकार हिलने लगी थी। आप यदि वायसराय और कमिश्नर के बीच का पढ़ेंगे कॉरेस्पॉन्डेंस तो उस एक लाइन बहुत ही इंटरेस्टिंग लिखा हुआ है। तो गांधी तो वही बनना चाहते थे, तुमने तो गांधी पर मुकदमा चला करके उसे हीरो बना दिया। वही काम जो गांधी दक्षिण अफ्रीका में किए थे वही काम गांधी यहाँ पर आकर कर रहे हैं। लेकिन गांधी ने इसको नहीं, उन्होंने जो स्टरफारिंग को चिट्ठी लिखी थी उसमें उसने इसका वर्णन किया था जो चंपारण की स्थिति थी और नेटाल से भी अधिक बदतर है। यहाँ पर गांधी सिर्फ राजकुमार शुक्ल के द्वारा कहे गए स्टेटमेंट के कंफर्मेशन के लिए आए थे और शुरू में गांधी को लगा था हम 2 से 3 दिन में चंपारण से वापस आ जाएंगे। लेकिन जैसे ही गांधी चंपारण में इन्वॉल्व हुए उन्हें लगने लगा जो अब यहाँ और अधिक रुकने की जरूरत है। गांधी जी पर से मुकदमा वापस ले लिया जाता है 21 अप्रैल को। गांधी जी 22 अप्रैल को चंपारण जाते हैं, बेतिया जाते हैं, और जब बेतिया जाते हैं तो लगभग 10,000 की भीड़ गांधी जी को रिसीव करने के लिए बेतिया स्टेशन पर खड़ी होती है। ट्रेन के ड्राइवर को लगता है यदि हम ट्रेन को लेकर के बेतिया स्टेशन तक जाएंगे तो बहुत लोग ट्रेन के नीचे में आकर कब जाएंगे। उसने जानबूझ करके ट्रेन को स्टेशन से पहले ही रोक लेता है। गांधी पर फूलों की वर्षा होती है। गांधी वहां से राजकुमार शुक्ल के घर पर जाते हैं, फिर मोहम्मद मुनीस के घर पर जाते हैं, एसडीओ लेविस से मिलते हैं। उसके बाद गांधी जी लोगों के साथ मिलना जुलना शुरू करते हैं।
27 तारीख को राजकुमार शुक्ल के घर पर वो पैदल चल करके जाते हैं मुरली बरावा, जहां पर कि ACM1 ने उनके घर को ढा दिया था, उनके बखारी को जिसमें अन्न रखा जाता है उसको नाबूद कर दिया था। लोगों से गांधी मिलते हैं, लोगों ने कहा हाँ हम ACM1 के कहने पर में इनके खेत को बर्बाद कर दिए हैं, नाश कर दिए हैं, तोड़ दिए हैं, उनके केले के बागान को नष्ट कर दिया गया था। और राजकुमार ने जो स्टेटमेंट बाद में दिया था उसमें उन्होंने इसका बड़ा अच्छा वर्णन किया है। उन्होंने कहा यदि हम वहां पर छुप गए थे, वहां के लोग जो आए थे वो हमको मार देते। लेकिन गांधी की एक बहुत बड़ी विशेषता थी जो उसने वहीं से शुरू किया था। गांधी जो पीड़ित थे उससे भी मिलते थे, जो पीड़क हैं जिसने चोट पहुंचाई है वो उनसे भी मिलते थे। वो किसी तरह का इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते थे। वो दोनों तरह, वो ACM1 से भी जाकर के बेलवा कोठी में मिले हैं और राजकुमार शुक्ल के घर पर से निकलने के बाद। इस प्रकार गांधी धीरे धीरे पूरे चंपारण के लोगों से मिलना शुरू करते हैं, रैयतों के गांव जाते हैं, उनसे डायरेक्ट इंटरेक्शन करते हैं, उनकी समस्याओं को समझते हैं। और मुजफ्फरपुर से जो वकील की बैटरीज आई थी, उनके साथ जो वकील आए थे, उसने उनको कन्वर्ट कर दिया है एक क्लर्क में। वो वकील को कहते हैं जो ये जो किसान है उनकी बातों को आप बहुत ही शुद्ध ढंग से लिखिए, डॉक्यूमेंटेशन करिए, जो उनकी क्या समस्या है, ये रैयतों, ये नीलों के बारे में क्या क्या बातें कहते हैं, और इस प्रकार वो डॉक्यूमेंटेशन शुरू करते हैं। आज की पीढ़ी को, आज के स्टूडेंट्स को इस बात को समझने की जरूरत है जो लगभग 100 साल से जो चंपारण में प्लांटर्स के जूतों के तले उनकी रैयतों की आत्मा को सराया जा रहा था, मारा जा रहा था। गांधी जी के आने के बाद उसने कुछ भी नहीं किया। गांधी जी ने चंपारण में एक भी खून नहीं बहाया है, किसी आदमी पर मुकदमा नहीं किया है, कभी धरना प्रदर्शन नहीं किया है, कहीं लाठी नहीं चली है, कहीं गोली नहीं चली है, किसी की डेथ नहीं हुई है। गांधी जी ने सिर्फ इतना ही किया जो कागज कलम लेकर के जो किसान थे, जो फार्मर्स थे, उनके दुख तकलीफ को उनके वॉलंटियर्स ने लिखना शुरू किया। और लगभग जब 4000 उनके डॉक्यूमेंट्स हो गए हैं, तब सरकार को समझ में आई है जो गांधी जी तो हमारे इस पूरे मिसलीड को वर्ल्ड लेवल पर में एक्सपोज कर सकते हैं। सरकार हिलने लगी है, डरने लगी है। गांधी को 10 मई को पटना बुलाया जाता है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जो मेंबर्स थे, मिस्टर मॉडे, राजकुमार शुक्ल के साथ वो पटना आते हैं। पटना में आकर के 10 मई को मॉडे से मिलते हैं। मॉडे को उन्होंने अपनी सारी बात कही। मॉडे ने कहा जो आप चंपारण से वापस चले जाइए। गांधी ने कहा जो ये हम कैसे जा सकते हैं जब तक कि यहाँ की समस्याओं को हम दूर नहीं कर दें। और उसने समस्याओं को समराइज करके गिनाया है जो कहाँ कहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, इसके साथ कहाँ पर इंडिगो प्लांटर्स और ब्रिटिश ऑफिसर्स इलीगल कामों को प्रश्रय दे रहे हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं। गांधी जैसे ही लिखना शुरू करते हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगती है जो ये तो बहुत ही मुश्किल बात है, जो यहाँ पर में लोगों को ये पता चल जाएगा जो ब्रिटिश ऑफिसर्स का इन्वॉल्वमेंट है इस इलीगल वर्क में, तो लोगों को बहुत खराब मैसेज जाएगा। गांधी वहां से अपनी बात शुरू करते हैं और फिर से वापस चंपारण जाकर के वो अपने काम में लग जाते हैं और लोगों से मिलना शुरू करते हैं, गांव-गांव घूमना शुरू करते हैं। चंपारण के सुदूर एरिया में पैदल जाते हैं, धूप का महीना होता है, वो कहीं पर में रुक जाते हैं रात में किसी किसान के घर पर में, फिर से वापस बेतिया आते हैं। राजकुमार शुक्ल ने एक तरह से पूरा का पूरा समा बांध दिया था गांधी के चंपारण से आने से पहले। वो एक तरह से जो वहां के रैयत थे, जो किसान थे, उनको ट्रेन कर दिया था जो गांधी आएंगे तो अपने दुख तकलीफ को किस प्रकार लिखेंगे। सब लोगों ने कहा था जो एक भी लाइन, एक भी बात, झूठी बातें नहीं लिखनी है, जो हो रहा है उसी के बारे में चर्चा करनी है। और गांधी जब डॉक्यूमेंटेड कर लेते हैं तो ब्रिटिश सरकार को लगती है जो अब हमारा पूरा का पूरा एक्सपोज करने के लिए गांधी तैयार हैं। फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर जो एडवर्ड गेट होते हैं वो 4 जून को गांधी को रांची बुलाते हैं। गांधी वहां रांची जाते हैं। गांधी से 4 दिनों तक वार्तालाप होती है। चंपारण एग्रेरियन इंक्वायरी कमेटी का गठन होता है। FG सलाई उसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं। 7 मेंबर्स कमेटी होती है, गांधी भी उसके मेंबर्स बनते हैं। फिर उस कमेटी के साथ गांधी गांव-गांव घूम कर में लोगों का बयान लेते हैं जो ऑफिशियल स्टेटमेंट्स होता है। और उसके बाद में वो कमेटी रिपोर्ट देती है। जो इंडिगो प्लांटर्स थे उसने जो सराबेसी और पैन खर्चा के नाम पर में इलीगल टैक्सेस लिया था, गांधी ने प्रपोज किया तो उस टैक्सेस को वापस फार्मर्स को कर दिया जाए। एक निगोशिएशन और मैनेजमेंट का बहुत ही अच्छा केस स्टडीज होता है जब हम अपने स्टूडेंट्स को बताते हैं जो गांधी किस प्रकार निगोशिएट किए थे ब्रिटिश सरकार के साथ में, तो वो होता है। उसके बाद फिर बाद के दिनों में चंपारण एग्रेरियन बिल पारित होता है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल से। और बिल पारित होकर के जितने भी तरह के इलीगल टैक्सेज होते हैं, या एक लाइन में ये कहें जो चंपारण के किसानों को नीलों से मुक्ति मिल जाती है, इसका एक पक्ष यह होता है। दूसरा पक्ष इसका ये है
जब गांधी गांव-गांव घूमते हैं, किसानों से मिलते हैं, तो उनको गांव की तकलीफों के बारे में पता चलता है। गांव की गंदगी, गांव की अशिक्षा, लोगों की मानसिकता, लोगों का रिएक्शनरी जो मेथड होता है उसके बारे में वो देखते हैं, वो प्रत्यक्ष गवाह बनते हैं उसके। गांधी को ऐसा लगता है कि यदि हम इस शोषण से यहाँ के लोगों को मुक्त भी कर दें तो ये फिर किसी दूसरे ट्रैप में फंस जाएंगे। गांधी ने कहा था, गांधी ने सोचा, राजकुमार शुक्ल से विचार किया, जो क्यों नहीं यहाँ पर हम एजुकेशन का, सैनिटेशन का, हेल्थ का, यानी जो जो चीज समाज को चाहिए, जिसके लिए समाज, जिसके बिना समाज नहीं जी सकता है, उसका इनिशिएटिव लें। राजकुमार शुक्ल के साथ उन्होंने किया था, लेकिन गांधी को लगा जो हम वॉलंटियर्स कहाँ से लाएंगे। गांधी एडवर्टीजमेंट देते हैं अपने महाराष्ट्र के अखबार में। गांधी पूना जाते हैं, पूना में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी पहले से काम करती होती है। गांधी कार्वे आश्रम जाते हैं, वहां के महिलाओं को, लोगों को ला करके चंपारण आने के लिए राजी करते हैं। हरिकृष्ण, डॉक्टर हरिकृष्ण देव थे, अवंतिकाबाई गोखले थे, भूपन गोखले थे, उन सब को लेकर के गांधी चंपारण पहुंचते हैं। उनको एक तरह से पहले ट्रेनिंग देते हैं, जो आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। और उस ट्रेनिंग को लेकर के गांधी सबसे पहले वहां पर बरहरवा लखन सेन है, वहां पर एक गांव है, वहां पर शिव गुलाम लाल से राजकुमार शुक्ल ने जमीन लिया था, वहां पर झोपड़ी में वो शुरू करते हैं घर, जिसको स्कूल या आश्रम कहा जाता है। वहां पर बच्चों का एनरोलमेंट होता है और वहां पर प्राइमरी एजुकेशन की पढ़ाई होती है। अभी मैम यहाँ पर मैं नेशनल पॉलिसी एजुकेशन पर में एक बहुत बड़ी चर्चा चल रही है, जिसे अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 29 जुलाई को पारित किया है। लेकिन चंपारण गांधी को यदि आप पढ़ेंगे और उनके दो स्टेटमेंट को खाली आप देख लेंगे। गांधी ने पहला स्टेटमेंट जो दिया था बरहरवा लखन सेन स्कूल के इनॉग्रेशन में, और दूसरा स्कूल उन्होंने विदर्भा में खोला था 20 नवंबर 1917 को, उसके इनॉग्रेशन में, तो आपको लगेगा जो दोनों में बहुत शामिल है। गांधी ने कहा था हमें ऐसा एजुकेशन नहीं चाहिए जो लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं दे, हमें ऐसा एजुकेशन नहीं चाहिए जो लोगों को बेटर सोचने के लिए राजी नहीं करे। गांधी ने जो ट्रेडिशनल मेथड था, जो गुण था, फैमिली का जो गुण था, और एग्रीकल्चर था, और एम्प्लॉयमेंट था, स्किल था, इस सब को मिला करके एक होलिस्टिक करिकुलम उन्होंने बनाया था और उसमें इंप्लीमेंट करना सिखाया था। गांधी ने अपने वॉलंटियर्स को कहा था जो सबसे पहले यहाँ पर कुआं के आसपास में जो है उसकी गंदगी को साफ करिए। वहां पर मैं लोगों को सैनिटेशन के बारे में बताया था। गांधी की जो वुमेन वॉलंटियर थी, महिला वॉलंटियर थी, वो घर घर घूम करके झाड़ू लगाती थी, वो लैट्रिन साफ करती थी, वो पानी के आसपास के पानी के बारे में बताती थी, वहां पर महिलाओं को कैसे रहा जाए उसके बारे में बताती थी। एक यहाँ पर एक टीसी होता है, टीसी को फुला करके महिलाएं केस में बांधती थी, 15 दिनों तक केस नहीं खोलती थी। गांधी के महिला वॉलंटियर्स ने उनको स्नान करने का तरीका सिखाया, लोगों को रहने का तरीका सिखाया, शिक्षा सिखाया। वहाँ के बच्चे स्कूल गंदे अवस्था में आते थे, यहाँ की महिलाएं उन बच्चों को नहला देती थी, उनके बाल को झाड़ देती थी, उन्हें बिल्कुल ही साफ बना देती थी। जब वो घर जाते थे तो साफ अवस्था में जाते थे, इससे उन्होंने उनका दिल जीता था। लेकिन जो प्लांटर्स थे उसमें भी काफी उन्होंने परेशानी उत्पन्न किया था। कस्तूरबा गांधी स्वयं आई थी, जो विदर्भा आश्रम की इंचार्ज होकर के कस्तूरबा को जिंदा जलाने का प्रयास किया था उस ब्रिटिश प्लांटर्स एसी एमन ने। हालांकि वो बच गई थी, उसका झोपड़ी चल गया था, कोई आदमी हताहत नहीं हुआ था। लेकिन गांधी वहां पर में उससे विचलित नहीं हुए, उन लोगों ने अपना काम जारी रखा था। कस्तूरबा ने गांव-गांव घूम करके महिलाओं को ये बताया था तो जिसके ऊपर अत्याचार होता है वह दोषी नहीं है, दोषी तो अत्याचार करने वाला होता है। अभी तक लोग ये समझते थे तो यदि किसी महिला के साथ दुर्व्यवहार हो गया तो इसमें उसकी गलती है। कस्तूरबा ने पहली बार लोगों को समझाया तो इसमें उसकी गलती नहीं है, गलती तो जो अत्याचार करने वाला होता है वो होता है। तो एक जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है, गांधी ने 100 साल पहले चंपारण में लागू किया था। लेकिन एक बड़ा प्रश्न ये होता है जो लोगों के मन में आ सकती है, जो महात्मा गांधी मोहनदास से महात्मा चंपारण में किस प्रकार बने, और महात्मा चंपारण सत्याग्रह का, फ्रीडम स्ट्रगल का जो पिलर्स था वो गांधी ने किस प्रकार रखा था। तो गांधी ने पहली बार लोगों को सत्य के बारे में जानकारी दिया था, अहिंसा के बारे में जानकारी दिया था। जानकारी ही नहीं दिया था, उसने ब्रिटिश प्लांटर्स और ब्रिटिश ऑफिसर्स के विल के अगेंस्ट में जा करके चंपारण में एक प्रैक्टिकल करके लोगों को दिखाया था, जो यदि आप सत्य, अहिंसा, निर्भय आदि को आधार बनाएंगे तो बड़ी से बड़ी समस्या आपकी यहाँ दूर हो सकती है। गांधी तो वहां गए थे राजकुमार शुक्ल के कहने पर में प्लांटर्स के अगेंस्ट में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, लेकिन गांधी से किसी ने कहा था जो आप एजुकेशन का यहाँ पर इनिशिएटिव लीजिए। गांधी ने किसी ने कहा था सैनिटेशन और हेल्थ के बारे में यहाँ पर इनिशिएटिव लीजिए।
लेकिन गांधी को का ऑब्जर्वेशन पावर था, और यदि लोगों में ऑब्जर्वेशन पावर होगा तो जिसमें लीडरशिप होगी, वो लीडर उस वहां पर में क्या कठिनाई है लोगों को, कैसे इसको दूर किया जा सकता है। गांधी से पहले भी वहां पर काफी लोग आ चुके थे, ब्रजकिशोर प्रसाद, रामनमी प्रसाद, गोरख प्रसाद आदि सभी बड़े बड़े वकील थे वहां पर में, लेकिन उन लोगों ने इस समस्या को समाधान नहीं कर पाए थे। यहाँ तक कि राजकुमार शुक्ल भी एक तरह से रुक गए थे, उन्होंने संघर्ष किया था, वो जेल गए थे, लेकिन समस्या का समाधान नहीं कर पाए थे। गांधी को का वो लीडरशिप था, उनका वो एक्सपोजर था, उनका वो माइंडसेट था, उनका वो एजुकेशन था, जो वो समझ गए जो ये समस्या का समाधान किस प्रकार होगा, और उन्होंने चुटकी में ये निर्णय ले लिया जो हम इस समस्या का समाधान कोर्ट में नहीं कर सकते हैं। बाद के दिनों में भी गांधी ने सोचा जो प्लांटर्स और रैयत के बीच में जो एग्रीमेंट, लगभग 50,000 एग्रीमेंट हो चुके थे, यदि हम इसको कोर्ट में ले जाएंगे तो हमें 100 साल लग जाएंगे। इसीलिए उसने इस समस्या को का निदान चाहा था। उन्होंने कॉलोनियल सिस्टम के जितनी भी गलतियां थी, जितनी भी खामियां थी, जितनी भी कमजोरियां थी, उस पर उन्होंने प्रहार किया था। और जैसा मैंने पहले कहा, जो ब्रिटिश सरकार का एक बहुत बड़ा सपना था, एक बहुत बड़ी उसकी ब्रांडिंग थी, उसकी लीगल सिस्टम, गांधी ने उसका एक्सपोज कर दिया था, जो आपका लीगल सिस्टम बिल्कुल ही खोखला है, और आपका लीगल सिस्टम से इस पूरे जनता को कोई समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, इसको बदलने की जरूरत है। इसका मतलब इस भारत को जब आप आजाद करेंगे तो हम नया संविधान बनाएंगे, हम अपनी नई लीगल व्यवस्था को करेंगे, ताकि हमारा प्रो पीपुल लीगल व्यवस्था होगा। हम इस पर में उसने काफी चोट किया था। गांधी को यदि आप चंपारण सत्याग्रह को पढ़ेंगे तो और भी चीजें निकल के आती है। गांधी ने कास्टलेस सोसाइटी की अवधारणा की थी, उसमें में छुआछूत की व्यवस्था थी, लोग वहां पर दूसरे का छुआ हुआ पानी नहीं पीते थे। जो राजेंद्र प्रसाद और जो ब्रजकिशोर प्रसाद थे, वो अपने वॉलंटियर, अपने एक नौकर को लेकर के गए थे। गांधी ने कहा जो यदि भारत को आजाद करना है तो आपको एक सामान्य नागरिक बननी पड़ेगी, चाहे आप कितने भी बड़े क्यों नहीं चले जाएं। गांधी स्वयं तृतीय दर्जे में ट्रेन के 3rd क्लास में सफर करते थे, और गांधी ने वहां पर कहा, वहां पर लोगों को सिखाया जो अनटचेबल कुछ भी नहीं होती है। राजेंद्र प्रसाद जो इतने बड़े वकील थे, अपने कलकत्ता में लीगल फर्टर्निटी के सबसे बड़े माने जाते थे, वो खुद से पानी पीते थे, अपना कपड़ा साफ करते थे, खाना बनवाते थे और खाते थे। एक प्रकार से उनको उनकी सारी चीजों को गांधी ने वहां पर में कॉमन किचन स्थापित किया था। कास्टलेस कंसेप्ट को गांधी के मन में किसी तरह की कोई दुर्भावना नहीं थी, ना अंग्रेज के प्रति कोई दुर्भावना थी, ना ब्रिटिश प्लांटर्स के प्रति कोई दुर्भावना थी। उन्होंने कहा था जो हमें जिन चीजों को दूर करना है, हमें उस पर विचार करना चाहिए। एक आदमी को दूर करने से समस्या खत्म नहीं होगी, वो दूसरे समय के रूप में आ जाएगी। गांधी ने सस्टेनेबल पीस के लिए एजुकेशन को, हेल्थ को, सैनिटेशन को चेंजिंग टूल्स बनाया था। उन्होंने स्कूलों की स्थापना की थी। जब जो अभी तक जो महिलाएं को वॉलंटियर्स के रूप में लाने का, खास करके सोशल वॉलंटियर्स के रूप में लाने का गांधी का वो पहला प्रयोग था। गांधी ने हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए काफी काम किया था। गांधी ने चंपारण में उसी समय में लोगों को बताया था तो यदि आप अपने धर्म की रक्षा करते हैं, अपने धर्म के प्रति आदर देते हैं, तो आपको ये भी करना चाहिए जो आप दूसरे धर्म के प्रति आदर की भावना रखें। गांधी ने वुमेन एम्पावरमेंट पर में बहुत ही बल दिया था। गांधी ने कहा था जब तक महिलाएं फियरलेस नहीं होंगी, जब तक महिलाएं पर्दा से बाहर नहीं आएंगी, जब तक महिलाओं में एजुकेशन सैनिटेशन की बात नहीं आएगी, तब तक ये देश आजाद नहीं होता है। गांधी ने संदेश दिया था कि सोशल ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए लास्ट बेंच के आदमी को एम्पावर करना बहुत जरूरी है। जो गांव में रहता है, जो कम पढ़ा लिखा आदमी है, निर्धन है, इसके बारे में कोई जानता नहीं है, उसको आपको एम्पावरमेंट करना पड़ेगा। गांधी ने वहां पर होलिस्टिक एजुकेशन सिस्टम की परिकल्पना की थी, और गांधी ने वहां पर एक ऐसे एजुकेशन पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया था जो लोगों के लिए हो, प्रो पीपल हो। गांधी ने चंपारण वॉलंटियर्स को एक प्रकार से ट्रेन कर दिया था, जिसमें कि राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह बाबू, ब्रजकिशोर प्रसाद, गोरख प्रसाद, हरबंस साहब, पीर मोहम्मद मुनीस आदि थे। बाद में ये सभी लोग फ्रीडम स्ट्रगल के बहुत बड़े पिलर्स बने थे। गांधी ने एक और मैसेज वहां पर दिया था जो आज की पीढ़ी को जानना बहुत जरूरी है। जो यह लोग समझते हैं जो अहिंसा का मतलब होता है तो एक गाल अपना दे दीजिए, दूसरा गाल, एक गाल पर यदि कोई मारता है तो दूसरा गाल आपके लिए रख देंगे। गांधी ने कहा था अहिंसा कायरों के लिए नहीं होती है, अहिंसा उसके लिए होती है जो बहुत ही दिल का मजबूत होता है। और गांधी ने चंपारण में अहिंसा के एक दूसरे पक्ष को भी लोगों को बताया था। जब एक गांव में पुलिस की एट्रोसिटीज हुई थी, गांधी वहां पहुंचे थे। गांधी ने लोगों को ललकारा था, जब पुलिस ने बिना बात यहाँ पर महिलाओं को साथ दुर्व्यवहार किया था तो तुम लोगों ने पुलिस को पीटा क्यों नहीं। गांधी को लोगों ने कहा जो आप तो समझाते हैं जो अहिंसा
यदि कोई भी लाठी उठाएगा तो हम चंपारण से चले जाएंगे। गांधी ने कहा कि मैं ये नहीं कहता हूँ जो तुमको कोई बिना बात मारे तो तुम चुपचाप सुन लो, यदि कोई तुमको बिना बात मारता है तो तुम उसको उससे अधिक मारो। गांधी ने अपने ऑटोबायोग्राफी में लिखा था जो हमें चंपारण में ही ईश्वर के दर्शन हुए थे। गांधी ने वहां पर में लोगों की तरह रहना सीखा था और यही कारण है जो चंपारण ने ही मोहन को महात्मा बनाया था। मैं एक प्रकरण का उदाहरण आपको दूंगा। जो विदर्भा आश्रम में एक दिन कस्तूरबा गांधी बैठी हुई थी और गांधी से वार्तालाप कर रही थी। गांधी ने कहा अमुक एक महिला है जिसको मैं पिछले 4 दिनों से देख रहा हूँ जो वो एक ही कपड़ा पहनी हुई है। आप कस्तूरबा से कहा जो तुम उस महिला से मिलो और उससे कहो जो वो प्रत्येक दिन अपने साड़ी को चेंज करे, साड़ी को साफ करे और साफ साड़ी पहने। कस्तूरबा उस महिला के घर पर गई है और उसने ये बात दोहराई है वहां पर। कस्तूरबा को पकड़ के वो महिला अपने घर के भीतर ले गई है और उसने कहा देखो मेरे घर में कोई भी एक पेटी या बक्सा नहीं है जिसमें मैं कपड़ा रख सकूं। मैं एक ही साड़ी पहनती हूँ और मैं इसको यदि धो दूंगा तो मैं क्या पहनूंगी, इसलिए तुम अपने महात्मा से कहो जो मेरे लिए एक साड़ी की व्यवस्था कर दें। जब गांधी ये बात सुनते हैं तो उनकी आंखों से टप टप आंसू निकलना शुरू हो जाता है। गांधी ने उसी दिन प्रण किया है जो मैं इसी देश की गरीब जनता की तरह रहूंगा। और गांधी प्रैक्टिस करते हैं, वो एक दिन बैठे हुए रहते हैं और अपने ऊपर की शर्ट को कमीज को खोल करके बेतिया में कुछ दूर तक टहलने जाते हैं। उनको लगता है जो पीपुल का रिएक्शन कुछ ऐसा नहीं है। धीरे धीरे वो इस चीज का ही प्रैक्टिस करते हैं जो अपने ऊपर का वस्त्र को छोड़ देते हैं। और आप जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का हिस्ट्री पढ़ेंगे, जब गांधी ब्रिटेन गए हैं तो उन्होंने उसी ड्रेस में उसी गरीब के ड्रेस में एक धोती पहन करके और धोती को ओढ़ करके वहां पर गए हैं। उनकी काफी खिल्ली उड़ाई गई है। गांधी बार बार इस चीज को लिखते हैं जब तक पूरे भारत की जनता को वस्त्र नहीं हो जाता है तब तक हमें वस्त्र पहनने की जरूरत नहीं है। गांधी के उस आइडियोलॉजी का चंपारण में क्या असर पड़ा था, हम आपको एक और उदाहरण से स्पष्ट करना चाहते हैं। जो लोगों में ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होती है। लोगों में शुरू में तो विद्रोह होता है, शुरू में तो लोग बात नहीं मानते हैं, लेकिन यदि आप सत्य अहिंसा और पर में डटे रहते हैं तो बड़े से बड़े लोग भी पिघल जाते हैं। राजकुमार शुक्ल की जब मृत्यु हुई है तो उसके जो सबसे चिढ़ शत्रु जो उसके साथ शुरू से ही लड़ाई करते आए हैं, मुकदमा करते आए हैं, उनका नाम एसी अम्मन था। एसी अम्मन जब उसको पता चलता है तो एसी अम्मन बहुत दुखी होता है। जब उसके श्राद्ध में एसी अम्मन जाते हैं, राजेंद्र बाबू, ब्रजेश्वर बाबू वगैरह भी जाते हैं तो वो कहते हैं जो एसी अम्मन से जो आप बहुत खुश हो गए होंगे क्योंकि आपके दुश्मन मर गए। तो एसी अम्मन कहता है जो वो दुश्मन नहीं था, वो तो अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहा था और देखिएगा जो मैं भी कुछ दिनों के बाद मर जाऊंगा। तो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का एक बहुत बड़ी मिसाल होती है। गांधी 1918 में चंपारण छोड़ करके चले गए हैं तो खेरा सत्याग्रह उनको इनवाइट कर लेता है, लेकिन राजकुमार शुक्ल गांधी को लेकर के उनके मैसेज को लेकर के काम करते रह गए हैं। और आप यदि 1918 से राजकुमार शुक्ल की मृत्यु 1929 में होती है, उस पीरियड में देखेंगे तो वो काफी लोगों को एक्टिव किए हैं। बेतिया में कई बार झगड़े हुए हैं, राजकुमार शुक्ल को लीडरशिप लेकर के उन झगड़ों को दूर किए हैं। जो थारू संप्रदाय है वहां पर में उनके कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किए हैं और वो दरभंगा में कांग्रेस की मीटिंग्स में गए हैं और ऐसे बहुत सारे काम किए हैं जो एक तरह से गांधी का ही काम किए हैं वो। लेकिन मरने से पहले राजकुमार शुक्ल वहां साबरमती आश्रम जाते हैं, वहां पर गांधी उनको नहीं मिलते हैं, लेकिन कस्तूरबा उनको देख करके रोने लगती है। उनकी पतली काया को गांधी राजकुमार शुक्ल वहां पर में करीब 15 दिन रुकते हैं, गांधी से मुलाकात होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाक्रम है वहां पर में। राजकुमार शुक्ल और गांधी के प्रकरण को समझने के लिए राजकुमार शुक्ल गांधी से एक ही प्रश्न करते हैं, देश आजाद कब होगा। गांधी कहते हैं जो इसमें समय लगेगा। राजकुमार शुक्ल ने कहा जो क्या मैं उतना दिन तक मैं जिंदा रह पाऊंगा। एक तरह से ये टीचर और स्टूडेंट का संवाद होता है जिसमें कि गांधी से अपेक्षा की जाती है जो देश को आजाद करें। राजकुमार शुक्ल ये अपेक्षा करते हैं जो तुमको देश की आजादी करनी। यदि आप 1929 के पहले की घटनाक्रम और देश गांधी का इतिहास पढ़ेंगे तो आपको लगता है जो गांधी एक बार शिथिल हो जाते हैं। तो ये जो संवाद होता है वो फिर से गांधी को झकझोरने के लिए होता है। लेकिन दुर्भाग्य ये होता है जो वहां से आकर के राजकुमार शुक्ल जब चंपारण आते हैं तो उनकी डेथ हो जाती है। उनकी सारी संपत्ति में से अधिकतर संपत्ति तो गिरवी रख चुकी होती है। उनके पास में उनका जो दाह संस्कार होता है वह भी एक तरह से सेलिब्रेटेड नहीं होता है, बहुत ही संक्षेप में होता है। तो गांधी जी को उन्होंने राजकुमार शुक्ल ने महात्मा बना करके देश की आजादी के लिए एक तरह से ट्रेंड कर दिया है और गांधी 1947 में देश को आजाद कराते हैं।
हालांकि गांधी भी देश की आजादी को सेलिब्रेट नहीं करते हैं। आप सब जानते हैं जो देश की आजादी से पहले कितने घटनाक्रम हुए थे, लेकिन इस चंपारण में गांधी ने पहली बार सत्य और अहिंसा को ही नहीं देखा था। गांधी ने 8 से 9 महीने तक इस चंपारण में पहली बार लोगों का इंटरेक्शन लिया था, लोगों के साथ बातचीत किया था, और उन्होंने भारत की नब्ज देखी थी, नब्ज पकड़ी थी, उनको यहाँ की समस्याओं के बारे में जानकारी मिला था। और यही कारण है जो गांधी यहीं से प्रेरित होकर के फ्रीडम स्ट्रगल के अभियान को शुरू किए हैं और आगे जाकर के स्वतंत्रता मिली है। आप लोगों ने मेरी बातों को ध्यान से सुना, मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। यदि कोई प्रश्न हो मैं उन प्रश्नों का जवाब दूंगा। बहुत धन्यवाद। Sakshi, go ahead. सर, चंपारण सत्याग्रह के उन क्षणों को पुनर्जीवित करने के लिए आपका खूब खूब आभार। And thank you for such an insightful presentation on the topic. So with that, we will go ahead and take some time for the questions now. And for this, I request our teacher, Mr. Parnaga K. Murthy, to act as the moderator. और सर, आपसे थोड़ा अनुरोध है कि टाइम कॉन्स्ट्रेंट के कारण आपके उत्तर थोड़े संक्षिप्त रहे, उतना अनुरोध है बस आपसे। मैं जानता हूं मैंने आपका बहुत समय ले लिया। नहीं जी, अब आप लोग प्रोसीड कीजिए जी। Okay, thank you, Sakshi. Thank you, Ms. Sakshi. Greetings to the Honorable Speaker, Shri Ravi Bhushan Roy and Shri Bhairav Lal Das ji. I am Pannaga, and now we shall proceed to the question answer session. Many students are eagerly waiting to know more on the actual scenario that occurred during Champaran Satyagraha with their questions. बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं सर आपके क्वेश्चंस, आपको क्वेश्चंस करने के लिए, बहुत सारे विषय समझने के लिए। Indeed, we are very lucky to have you both, Roy ji and Das ji. आपकी उपस्थिति बहुत हमको मायने रखता है to get a clear view of the happenings during the movement. The students will pose the questions and I request any of the two speakers to respond. Okay, sir, thank you. The audience on YouTube live is welcome to put forward their queries, if any, to the panel of our esteemed speakers in the chat box. I'll bring some of them up to the speakers. Now I call upon Ms. Sai Soumya, a class 12 student, to pose her question to the speakers. Sai Soumya? Yes, ma'am. A very good morning to Shri Ravi Bhushan Roy and Shri Bhairav Lal Das. It is an honor to have two of the most prominent people clearing all kinds of misconceptions and giving us the utmost details of the Champaran movement. राजकुमार शुक्ला बिहार के चंपारण सतवरिया ग्राम के निवासी और स्वतंत्रता सेनानी थे। इस सीधे साधे लेकिन जिद्दी शख्स ने उन्हें अपने इलाके के किसानों की पीड़ा और अंग्रेजों द्वारा उनके शासन की दास्तां बताई और उनसे इसे दूर करने का आग्रह किया। लेकिन गांधी जी ने आपके दादाजी से कहा कि फिलहाल वे उनका पीछा करना छोड़ दें। जैसे कि श्री भैरव लाल दास ने कहा, अगर राजकुमार शुक्ला और उनकी जिद ना होती तो चंपारण आंदोलन से गांधी जी का जुड़ाव शायद संभव नहीं हो पाता। मैं श्री रवि भूषण रॉय से पूछना चाहती हूँ, मेरा प्रश्न, जब हम लोग इस दुनिया के महान नेताओं के बारे में बात करते हैं तब गांधी जी का नाम अवश्य याद किया जाता है। बहुत लोगों को गांधी जी का नाम पता है, लेकिन उनके नाम के आगे महात्मा जो जोड़ा जाता है उसका अर्थ नहीं पता। ऐसे लोगों को हम कैसे समझा सकते हैं कि कैसे गांधी जी ने किसानों को हौसला दिया और अपना नेतृत्व को साबित किया। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद मैम। ये हेलो सुनाई दे रही है, आप बात कीजिए सर जी। ये प्रश्न होता है, यह सही बात है कि गांधी जी को राष्ट्रीय फलक पर होना चाहिए। इस देश के चालबाजी की हकारों का ये दिन है कि उन्हें हाशिए पर ढकेल दिया। मैं इसकी चर्चा बराबर ये भैरव लाल दास जी से करता हूँ और यह पीड़ा मेरे मन में बराबर रहती है और मैं बहुत तर्क वितर्क करता हूँ। बहुत हद तक इन्होंने मुझे लाके
इस चौराहे पर खड़ा कर दिया जहां से मुझे कहीं रास्ता दिखाई नहीं देता है। इस देश का दुर्भाग्य है कि शुक्ल जैसे लोगों को नहीं जानते हैं। हम तो सबसे पहले आभार व्यक्त करेंगे अपने बिहार राज्य के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री श्री नीतीश जी का कि पहली बार उन्होंने मेरे पूरे परिवार को बुला करके खुले मन शताब्दी वर्ष पर उन्होंने सम्मानित किया, मेल फीमेल सबको। यह 100 साल के इतिहास में किसी नेता ने आज तक नहीं किया था जो उन्होंने कर दिया। और सरकार जहां उनको हर जगह होना चाहिए था, उनको राष्ट्रीय फलक पर होना चाहिए था, वो एक तरह से समझिए कि मकान के नियम में दबके रह गए और गुमनामी के ढेर में खो गए। इसके लिए कौन दोषी है? मैं तो मानता हूं कि राष्ट्रीय ये आजादी के बाद आजादी जो मिली उनके बाद जो उपजे नेता, ये इन लोगों की चालबाजी है। मैं और कुछ नहीं कर सकता हूँ। मुझे बड़ी पीड़ा होती है, दुर्भाग्य है। हर गांधी जी के जहां जहां फोटो है वहां उनकी तस्वीर होनी चाहिए, लेकिन उनका नाती दुख है कि जीवन भर शुक्ल जी गांधी जी के पीछे पीछे रहे, हाथ जोड़ के कि चलिए मेरी दुख और व्यथा को सुनिए। और मैं आज उनका नाती 100 साल के बाद वही काम शुरू कर रहा है। हर नेता, हर आश्रम जहां जहां गांधी जी का है वो हाथ जोड़े कहता है कि सर मैं अपने रिटायरमेंट के पैसा से एक फोटो बनवाया हूँ, यहाँ गांधी जी की स्मृति है, इसलिए शुक्ल जी को यहाँ आप टांगिए। तो बहुत जगह तो टांग दिया मैंने, लेकिन कुछ जगह जो है सो शुक्ल जी के लिए जगह भी नहीं मिल पाता है, वहां हमको बड़ी परेशानी होती है। और हम भी चूंकि 68 ईयर्स के ओल्ड में आ गए हैं, जिस तरह से गांधी जी ये शुक्ल जी आजाद भारत को नहीं देख पाए, मुझे भी कभी कभी डर होता है कि मैं भी उनकी स्मृति रक्षा कर पाऊंगा कि नहीं। मुझे ये लगता है कि मैं एक दिन जी रहा हूँ, वो बोनस में जी रहा हूँ, लेकिन फिर मैं हिम्मत नहीं हूँ। और ये इसमें बहुत बड़ी भूमिका है भैरव लाल जी का। ये बहुत हमको ढाल देते और कहते हैं कि देखिए मैंने बहुत जगह किया, उनका जो पाठशाला जो खोले थे गांधी जी बहरवा लखनऊ में, वहां उनका तस्वीर लगाया। विद्यालय में किया, शताब्दी वर्ष पर मुख्यमंत्री जी ने मूली गांव में उनका स्टैचू लगवाया है, पार्क भी बनाने के लिए कहा है। गांधी संग्रहालय में रजी साहब ने उनकी मूर्ति बनवाई है। उसके बाद गुजरात विद्यापीठ में हमको बुलाया गया था, वहां सम्मानित भी किया गया। मैं गुजरात के हर विद्यापीठ के हर सेक्शन में वहां फोटो शूट दिया। वहां से मैंने दिया ये पारिक भाई महाजन को कि भाई आप साबरमती में लगा दीजिए। मैं स्वयं उनका पहला आश्रम जो था कुचरा धाम वहां जाके लगाया। फिर वहां से उदय भाई महाजन का मेरे पास फोन आया मुटियानी भवन के माध्यम से कि आप जरा उनके नाती को भेजिए। मैं जाके अपनी व्यथा कही और उनको कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए कि भाई ये लीजिए, गांधी जी और शुक्ल जी से जुड़े ये डॉक्यूमेंट्स दस्तावेज है जो आपके लिए उपयोगी होगा, क्योंकि वो गांधी संस्थान जो है बहुत बड़ा है वहां का। तो इस तरह से हम फोटो भी करके भाई ले लीजिए, बनवाइएगा। तो इसी तरह से मैं घूम रहा हूँ और देख रहा हूँ और कर रहा हूँ। मैं जब तक जिंदा रहूंगा तब तक उनकी स्मृति को भी करूंगा। हमारे में 2 डाक टिकट हम लोग मेरे 100 है बाइक कमल लैंड जोड़ने से हम लोगों की पुण्यतिथि जयंती मनाते हैं। अब तो बहुत सारी संस्थाएं भी मनाने लगी हैं, तो हम लोग 2 डाक टिकट जारी करवाए। मुख्यमंत्री को हमने लिखा कि भाई ज्ञान होने बहुत बड़ा है, इसमें बहुत सारे कमरे हैं, राजकुमार शुक्ला जी के नाम पर बनवाया जाए। तो उन्होंने राजकुमार शुक्ला सभागार का एक नामकरण किया, कस्तूरबा के नाम पर किया, फिर मोहम्मद मिश्र के नाम पर किया। हम उनके आभारी हैं और हम उनको हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। तो ये पीड़ा मैडम हमको रहती है और मैं जब तक जिंदा रहूंगा उनकी स्मृति को ताजा करता रहूंगा और जहां तक है मैं करता रहूंगा। ये पाठ्यक्रम में है तो ये हम लिखते रहे, लेकिन हमको ये पता नहीं था कि एनसीईआरटी में 2006 में ये पाठ्यक्रम में शामिल हो गया है। ये हमको भैरव दास जी से पता चला और कहा कि इसमें बहुत गलत पढ़ाई हो रही है। इन्होंने सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए इन्होंने पहले प्रोसेस निकाला, ये पेपर में बहुत न्यूज़पेपर में छपवाया ताकि सरकार का ध्यान आकृष्ट हो जाए। जब नहीं हुआ तो इन्होंने कहा कि नहीं, अब ऐसा नहीं होगा, चलिए हम सदन में इस मामले को उठाए। तो वहाँ 4-5 एमएलसी लोगों को हम लोग तय किया और वहाँ जो है सो हंगामा कुछ हुआ। फिर उसके बाद तब जो है स्पेशल अफसर का डिप्यूटेशन हुआ। इसमें बहुत बड़ी भूमिका हमारे भैरव दास जी की है, हम उनको हृदय से आभार करते हैं। तो इसी तरह से हम उनके कार्य में लगे हुए हैं। उनकी पुण्यतिथि और ये जन्म तिथि मनाने के लिए भी हम लोगों ने सदन में कार्रवाई किया, मांग किया, उसमें आश्वासन भी मिल गया, लेकिन अभी सरकारी घोषणा नहीं हो पाई है।
तो अब ये बताइए, जो स्वतंत्रता सेनानी के लिए उनके परिवार को जो सरकार को स्वयं करना चाहिए, उनका परिवार आज जो है सो बिलख रहा है और हम सेवानिवृत्त है, उस पैसे से फोटो मंगवा के बनवा करके घूम रहे हैं और इसकी चर्चा करते हैं, करवाते हैं। ठीक है रवि जी, मैं उत्तर देता हूं। मैं समझ रहा हूं आप भावुक हो रहे हैं। मैं सौम्या का उत्तर देता हूं। मैं सौम्या के प्रश्न का उत्तर देता हूं। कृपया मुझे मौका दिया जाए। Yes sir, you can proceed sir. हाँ, थैंक यू मूर्ति जी। और सौम्या का जो प्रश्न ये है, जो गांधी और महात्मा का रिलेशन, गांधी के आइडियोलॉजी का रिलेशन और गांधी को जहां पर गांधी हैं वहां पर शुक्ल जी का क्यों नहीं रिकॉग्निशन हो रहा है। मैं सौम्या को मैंने ये विस्तार से बताया। जो महात्मा का मतलब जो ग्रेट पर्सनालिटी, जो ग्रेट सोल जो जिसको बोला जाता है, गांधी चंपारण में ही कन्वर्ट होकर के महात्मा बने थे। मैंने उससे विस्तार से बताया जो किस प्रकार राजकुमार शुक्ल ने गांधी को एक तरह से लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म अवेलेबल करवाया था। लेकिन एक जो प्रश्न, वो तो हमारे रवि जी थोड़ा सा अधिक भावुक हो जाते हैं इस बात को लेकर के। मैं उतना भावुक नहीं होता हूँ। मैं समझता हूँ गांधीयन आइडियोलॉजी हजारों हजार साल तक इस धरती पर जिंदा रहेगा। जहां जब कभी भी गरीबी रहेगी, जब कभी भी अशिक्षा रहेगी, जब कभी भी अभाव रहेगा, शोषण रहेगा, तो गांधीयन थॉट यहाँ प्रिवेल करेगा। और सौम्या जी, मैं आपको बताऊं, बहुत दुख के साथ बताना चाहता हूं, जो आपने कहा जो राजकुमार शुक्ल को रिकॉग्निशन क्यों नहीं है, रिकॉग्निशन कौन देगा। गांधी ने अपने ऑटोबायोग्राफी में राजकुमार शुक्ल को जितना रिकॉग्नाइज किया हुआ है, चंपारण अफेयर्स को जितना रिकॉग्नाइज किया हुआ है, उससे अधिक बड़े डॉक्यूमेंट्स की जरूरत कम से कम राजकुमार शुक्ल को नहीं है। और जहां तक सवाल होता है, आपको तो पता ही होगा, जो इस देश ने गांधी का मर्डर कर दिया था, गांधी को गोली मार दी थी। गांधी के आइडियोलॉजी यदि आज जिंदा नहीं रहते तो इतने सालों के बाद गांधी की आइडियोलॉजी, गांधी की मूर्तियां पूरे विश्व में बन रही है। क्या आप किसी ऐसे नेता को जानते हैं गांधी के अलावे जो इसने मरने के इतने दिनों के बाद तक लोग जिसकी पूजा करते हो, जिसके प्रति आदर रखते हो? तो ये धरती जब तक गांधी हैं, जब तब तक रहेंगे, राजकुमार शुक्ल तब तक रहेंगे, तब तक चंपारण रहेगी, जब तक गांधी की ऑटोग्राफी रहेगी। मैं दूसरे प्रश्न का प्रतीक्षा कर रहा हूँ। Okay sir. Question is from Ambika Govind of class 12. Ambika, please pose your question, child. संभव होता तो मैं प्रश्न हिंदी में अवश्य पूछ लेती, परंतु मेरे अन्य सहपाठियों के समझने के लिए मैं अंग्रेजी में पूछूंगी। किसी आवाज कमजोर आ रही है अंबिका? क्या मैं अभी थोड़ी जोर से बताइए, माइक नजदीक लेकर के जोर से बोलिए। अभी ठीक आ रही है? हाँ, आ रही है। ठीक है, तो संभव होता तो मैं प्रश्न हिंदी में अवश्य पूछ लेती, परंतु मेरे अन्य सहपाठियों के समझने के लिए मैं अंग्रेजी में पूछना चाहूंगी। हाँ, पूछिए, अंग्रेजी में पूछिए। तो my question is to Shri Bhairav Das ji. My question focuses on one aspect of the struggle. The author of our lesson had reiterated the fact that a lot of social stigmas and evils prevailed in Champaran at that time, not to mention poverty. This year we have celebrated our 74th Independence Day. So how far has the scenario improved there? Do malpractices such as open defecation and untouchability still exist there? How far do you think Champaran has evolved with the advent of knowledge and technology? आपने मेरी दुखती रगों पे हाथ रख दिया अंबिका गोविंद जी। आपने ये पूछा है, जो गांधी वहां पर 1917 में आए, वहां पर उन्होंने 8 महीने तक काम किया। हम 74वीं वर्षगांठ मना रहे हैं अपनी आजादी का। चंपारण कितना बदला है। यदि मैं आपको एक पंक्ति में बताऊं तो आपको ऐसा लगेगा कि चंपारण बदला तो है, लेकिन सामाजिक स्थिति शायद वैसी ही अभी भी है जैसे गांधी जिस समय में आए थे। चंपारण में बहुत परिवर्तन नहीं हुए हैं। ये दुख की बात है। आपको सुन करके बहुत तकलीफ होगी। जो चंपारण में अपराध की ऐसी स्थिति थी, क्राइम्स की ऐसी स्थिति थी, जो चंपारण को में बगहा को पहला पुलिस डिस्ट्रिक्ट बनाना पड़ा था। सैनिटेशन, हेल्थ, अभी भी इस साल भी चंपारण में फ्लड आए हैं। चंपारण के लोगों का सबसे अधिक, इस बार जो कोविड-19 हुआ है उसमें चंपारण के लोगों का सबसे अधिक बिहार से बाहर माइग्रेशन हुआ था। तो मैं इस बात को स्वीकार करता हूं, जो चंपारण की परिस्थिति
वैसी नहीं है जैसे देश के दूसरे जगहों की है, थोड़ी सी कम, थोड़ी सी अधिक। आपको रोड मिल जाएंगे, बिजली मिल जाएगी, आपके विलेज पंचायतें हैं वहां पर में काम करती है, लोगों में थोड़ी सी खुशहाली है, वैसी नहीं है जो पहले चंपारण में थी। लेकिन अभी भी चंपारण को में बहुत कुछ करने की जरूरत है। कम से कम गांधी के सपना को यदि साकार करना है तो चंपारण पर हमें और अधिक ध्यान देने की जरूरत है। एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटेशन या अलग जो भी चीजें हैं। धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन। Now I call upon Miss Sahna, a class 12 student, to pose the question to the speakers. Miss Sahna. Good morning to everyone here. मेरा जो क्वेश्चन है वो धैर्य और धीरज के ऊपर है. As we all know that it was because of Mr. Rajkumar Shukla the peasants in Champaran got justice from the landlord system in Bihar. And we all know that Mr. Shukla was behind of Gandhi for months to take him to Champaran, Bihar. So here we can see his tenacity and patience. So I would like to ask, what do you think about the term patience and its key role in youngsters today? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है सपना आपका, लेकिन हम आपको थोड़ा सा इसमें करेक्शन चाहते हैं। आपने एक वर्ड का यूज किया लैंडलॉर्ड सिस्टम का, आपने भी शायद लुइस पीसर की ही वो चैप्टर्स पढ़ी है, उसमें उसने लिखा है जो लैंडलॉर्ड सिस्टम के अगेंस्ट में यहाँ पर में चंपारण में विद्रोह हुआ था, ये बात सही नहीं है। लैंडलॉर्ड सिस्टम के अगेंस्ट में नहीं हुआ था। हाँ, उसमें लैंडलॉर्ड सिस्टम की भी बात थी, लेकिन ब्रिटिश इंडिगो प्लांटर्स के एट्रोसिटीज के अगेंस्ट में वहां पर विद्रोह हुआ था। ये इसमें थोड़ी सी बारीकी है। लैंडलॉर्ड सिस्टम का यदि विरोध होगा तब क्या होगा, और ब्रिटिश एट्रोसिटी जो इंडिगो फार्मर्स की थी तब क्या होगा। तो मैं चाहूंगा जो आप इस दोनों के बारीकी को थोड़ा पढ़ें, और बहुत सारी किताबें हैं, आप हमसे अलग से भी बात करके इस चीज क्लियर हो सकती हैं। आपके प्रश्न का दूसरा भाग है जो राजकुमार शुक्ल को इतना पेशेंस कैसे आया, इतना धैर्य और धीरज वो कैसे लाए, जो महीनों महीनों तक वो चिट्ठी लिख रहे हैं, वो दौड़ रहे हैं, वो जा रहे हैं। तो सपना जी, एक जो इन्वॉल्वमेंट होता है वो इन्वॉल्वमेंट उस आदमी को अधिक होता है जो आदमी उसकी पीड़ा झेलता है। आप देखेंगे जो एक मदर और एक फादर दोनों है एक बच्चे के लिए, लेकिन मदर जितना एक बच्चे से स्नेह करती है फादर शायद उतना स्नेह नहीं कर पाता है, क्योंकि मदर ने उस बच्चे को जन्म दिया है, उस बच्चे को जन्म की पीड़ा को भी उसने झेला है, उस बच्चे को 9 महीना तक अपने गर्भ में रखी है। यही एक अंतर होता है। राजकुमार शुक्ल ने लगातार कई सालों तक उस इंडिगो प्लांटर्स की पीड़ा को झेला था, उनके परिवार को झेला था, उसकी सारी संपत्ति नाश हो गई, उनके घर द्वार नाश हो गए, उन्हें जेल में बंद कर दिया गया, उनकी कई तरह की प्रताड़ना उनको सहनी पड़ी थी। इसीलिए गांधी को मिलने का जो धैर्य और धीरज था, मेरे हिसाब से तो वो कम ही था। यदि उनको और धैर्य रखना पड़ता, हो सकता है साल भर के बाद गांधी आते तो राजकुमार शुक्ल फिर भी चुकने वाले नहीं थे, तो तब तक गांधी के परसुएशन में लगे रहते जब तक गांधी आते नहीं। और यह सौभाग्य की बात है जो गांधी कुछ ही दिनों के बाद चंपारण आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन। धन्यवाद जी, और मैं अपनी गलती को सुधार लेती हूँ। थैंक यू सो मच। Okay, we have Miss Shrija Duvada of class 11 next. Miss Shrija, please ask your question. Shrija? Yes, 1 second. Unmute yourself, Shrija. Good morning, ma'am. Can you hear me? Yeah. Yes. Go ahead. Good morning to our guests, Bhairav Lal Das and Shri Roy ji. But first of all, when Gandhi ji was in Shantiniketan after returning from South Africa in 1915, then a reporter, C.F. Andrews, asked whether there was any possibility for him to start a new satyagraha in India. And then Gandhi ji replied strongly that there was no such possibility for at least 5 years. And even when Shri Rajkumar Shukla ji went to Gandhi and asked him to join the Champaran movement, he was considerably hesitating at the beginning. But what words and character traits of Rajkumar Shukla made Gandhi ji to come and start a satyagraha at Champaran? देखिए, आपने श्रीजा जी आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। आपको जानकारी होगी जो CF एंड्रूज चंपारण भी पहुंचे थे उनसे मिलने के लिए, पुलक भी चंपारण आए थे, और ये दोनों आदमी गांधी के साथ काफी घनिष्ठ रूप से होते।
आपने कहा, आपने गांधी के माइंड की मैपिंग के बारे में बताया है, जो शांति निकेतन में उन्होंने कहा था कि मैं 5 सालों तक कम से कम यहाँ नहीं रह, मैं यहाँ कोई भी विद्रोह या कोई भी ऐसा आंदोलन करने के लिए तैयार नहीं हूँ। लेकिन ये गांधी राजकुमार शुक्ल का जो एक तरीका था चीजों को रखने का, गांधी वहां पर मैंने पहले ही कहा दिया, जो चंपारण में कोई आंदोलन करने की नियत से नहीं आए थे गांधी को राजकुमार शुक्ल ने जितनी चीजें बताई, गांधी को ऐसा लग रहा था जो ये इम्पॉसिबल है, इस ब्रिटिश लीगल सिस्टम में ऐसा कैसे हो सकता है। गांधी को लगा जो राजकुमार शुक्ल शायद चीजों को बढ़ा चढ़ा करके करें, और गांधी पहली बार चंपारण तो इसलिए ही आना चाहते थे, जो राजकुमार शुक्ल ने उन्हें जिन चीजों की जानकारी दी है उसमें कितनी सच्चाई है इसको कंफर्म करना। गांधी ने सोचा था, लिखा भी है गांधी जी, मैं शुरू में चाहता था कि 1 से 2 दिनों के अंदर में काम खत्म होगा। गांधी ने चिट्ठियों में भी इसका जिक्र किया है। लेकिन जब वो राजकुमार शुक्ल उनको लेकर के मुजफ्फरपुर पहुंचते हैं, इवन जो ट्रेन में भी गांधी से वार्तालाप होती है तो गांधी को विश्वास नहीं होता, उसको लगता है राजकुमार शुक्ल चीजों को बढ़ा चढ़ा के कह रहे हैं। जब वो राजेंद्र प्रसाद के घर पर पहुंचते हैं और उनके नौकर ने उनको एक अछूत की तरह व्यवहार किया है, तब तो एक तरह से राजकुमार शुक्ल पर उनको गुस्सा आता है। वो अपने पुत्र को, जो अपने मगनलाल गांधी को चिट्ठी लिखते हैं, उसमें आप पढ़िएगा तो आपको लगेगा जो राजकुमार शुक्ल के बारे में उन्होंने शायद ऐसे शब्दों का उपयोग किया है जो एक उनके लिए नहीं किया जाना चाहिए था। लेकिन वही गांधी जब राजकुमार शुक्ल उनके साथ मुजफ्फरपुर पहुंचते हैं और वहां के वकीलों से मिलते हैं, तो उनको लगता है जो नहीं, राजकुमार शुक्ल ने जिन चीजों को बताया है उससे अधिक गंभीर यहाँ की स्थिति है, और उनका इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाता है। वो ही एक मुजफ्फरपुर ही उनका एक टर्निंग पॉइंट होता है, जब गांधी अपने को पूरी तरह से तैयार कर लेते हैं, जो समस्या क्या है, इस समस्या का समाधान कैसा होगा, इसके लिए वॉलंटियर्स कैसा चाहिए, इसके लिए इंस्ट्रूमेंट कैसा चाहिए, उनका रिएक्शन कैसा होगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट, एक तरह से पूरी रूपरेखा उनकी तैयार हो जाती है। और जसौली पट्टी, जहां पर कि राजकुमार शुक्ल को उन्होंने पहले ही भेज दिया है, गांधी ने जो वहां पर जाकर के लोगों को सूचना दे दी जो हम आ रहे हैं, और वहां पर में उसकी तैयारी शुरू हो जाती है। तो शांति निकेतन में जो उनकी स्थिति थी और मुजफ्फरपुर में जो उनकी स्थिति थी, एक तरह से वो उसमें चेंजिंग आ गई होती है, और गांधी जी वहां पर में चंपारण के लिए तैयार हो गए होते हैं। लेकिन सिरजा, मैं आपको फिर से बताता हूँ, तो चंपारण में गांधी ने किसी तरह का आंदोलन नहीं किया है, गांधी ने किसी तरह का धरना प्रदर्शन नहीं किया है, कोई रैली नहीं किया है, कोई मुकदमा नहीं किया है, किसी पर FIR नहीं किया है, कोई गोली नहीं चली है, किसी का खून नहीं बहा है, किसी की डेथ नहीं हुई है। ये अहिंसक सत्याग्रह था, और इसीलिए गांधी इस पूरी दुनिया में चंपारण सत्याग्रह को लेकर के जो फेमस हुए हैं, उसने एक इतना बड़ा काम कर दिया है, जितना बड़ा काम शायद गोली बारूद बंदूक युद्ध से नहीं हो सकता है। श्रीजा। Thank you, sir. That was very useful and knowledgeable for me. Thank you. The next question is by Miss Neha of class 10. Miss Neha, please pose your question. Good morning, sir. Namaste, sir. First, I would like to thank you very much for this very educative webinar that has taken place today, sir. I would like to pose a question, if you don't mind. It was very clear that it was due to Gandhiji's leadership that the planters expressed their readiness to reduce the rent, but by only 25%, while Gandhiji demanded a reduction of 40%. In the end, Gandhiji accepted the 26% reduction. I am curious, sir, because I would like to know, after all the hard work that Gandhiji had put into, why did Gandhiji accept such a low reduction in the rent, sir? Thank you. वाह नेहा, आपने चंपारण सत्याग्रह की छोटी छोटी बातों का बहुत ही डीप स्टडी किया है। मुझे बहुत खुशी हुई है आपके इस क्वेश्चन से, और मैं आशा करता हूं जो आप और ज्यादा पढ़ेंगे। आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। तो जब गांधी जी ने शुरू में लोगों ने कहा था जो 40% उनका रिडक्शन होगा सरबेसी और पैन खर्चा में, और वो 25% वो प्लांटर्स रेडी थे रिटर्न करने के लिए। फिर निगोशिएशन चला है। मैंने कहा था ये बहुत बढ़िया सुंदर निगोशिएशन का चैप्टर है, और उसमें इवन जो गांधी के जो कलीग्स थे, जो ब्रजकिशोर प्रसाद थे, वो लोग भी गांधी का एक तरह से विरोध करना शुरू कर दिया था, जो आप लो रेट पर में आप मत मानिए, ये रैयतों का पैसा है जिसको कि इलीगली प्लांटर्स ने एक्सट्रैक्ट किया है, उससे रैयतों को वापस मिलना चाहिए। गांधी भी इस चीज को समझ रहे थे, लेकिन ये गांधी के पर्सनालिटी की एक बहुत ही विराटता है। जब गांधी ने इस चीज को एक्सेप्ट किया है, जो मैं स्वयं एक्सेप्ट करता हूं, जो ये रैयतों का ये इलीगल टैक्स लिया गया है उससे,
लेकिन गांधी ने एक शब्द बोला है, एक सेंटेंस का यूज किया है, जो मैं गुजरात का बनिया हूं। मैं समझता हूं जो ये 25% या 40% या 26% से बहुत कुछ होने वाला नहीं है। जिस दिन प्लांटर्स को इस पूरे चंपारण के प्लांटेशन बिजनेस में उनको लगेगा जो हम रैयतों से इलीगल टैक्सेस लेने में अब सक्षम नहीं है, तो जैसा कि आप स्वयं जानते हैं, जो उधर जर्मनी ने जो सिंथेटिक इंडिगो बना चुका था, और फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जो नील का दाम बढ़ा था, वो वर्ल्ड वार खत्म होने वाला था और नील का दाम उसके बाद और घटा। और गांधी ने ये प्रेडिक्शन किया था, जो आप देखिएगा ये सभी लोग नील का पूरा बिजनेस समेट के यहाँ से चले जाएंगे। और गांधी के जाने के 10 सालों के अंदर चंपारण से लगभग सारे के सारे इंडिगो प्लांटर्स वापस चले गए। गांधी इतने अधिक बड़े सोशल साइंटिस्ट थे और उनका सोशल प्रेडिक्शन इतना परफेक्ट था कि वो जानते थे जो ये 26% या 25% के चक्कर में हम रहेंगे तो हम कुछ भी नहीं ले पाएंगे। और निगोशिएशन का एक बहुत बड़ा ही फैक्टर्स होता है, यदि आप कुछ भी ले पाते हैं तो थोड़ा कम पर भी आप कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए। वही गांधी ने चंपारण में किया। Thank you very much, sir. Next question. Next question. Good morning, everyone. Good morning, sir. Yes. Go ahead, Sampath. In the period of 1900s, the people, especially in Northwest Bihar, are almost uneducated and violent in different ways, and they were ready to fight against the British in violent ways. So, how did Gandhiji become successful in inculcating the spirit of Satyagraha among the people of Champaran? ये आपका नाम क्या हुआ? मैं नाम नहीं सुन पाया. What is your name? Sampath, class 10. संपत, ये मैं इस चीज को नहीं मानता हूँ जो बिहार की जो जनता थी वो अनएजुकेटेड थी या वायलेंट थी। जिस चंपारण में गांधी आए हैं उनसे करीब 2500 साल पहले महात्मा बुद्ध इसी चंपारण में आ चुके थे। आप यदि बिहार की हिस्ट्री को जाएंगे तो पीस के जितने भी मैसेज हैं, चाहे वो बुद्ध द्वारा हो, चाहे जैन द्वारा हो, चाहे मुस्लिम्स के फकीर द्वारा हो, या फिर सिख्स के गुरु गोविंद सिंह द्वारा हो, जितने भी पीस मैसेज हैं वो बिहार से ही गए हैं। बिहार के लोग काफी मेहनती होते हैं, वायलेंट बिल्कुल ही नहीं होते हैं, बिल्कुल ही शांत प्रकृति के होते हैं, एग्रीकल्चर माइंडेड होते हैं, डेवलपिंग माइंडेड होते हैं। हाँ, एजुकेशन का उनमें थोड़ी सी कमी थी, लेकिन यदि आप इसकी हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय यहीं पर था, नालंदा विश्वविद्यालय यहीं पर था, और यहाँ के लोग काफी रिलीजियसली बहुत ही रिच माइंडेड होते थे। तो ऐसी बात नहीं है जो यहाँ पर लोग अनएजुकेटेड थे। जितने भी, यदि आप 6 दर्शन की बात करते हैं तो 4 दर्शन का शुरुआत तो बिहार से ही हुआ था। लेकिन जब गांधी आए हैं तो उन्होंने एक बहुत ही सिंपली समझ लिया है इस चीज को, जो मेरे आने से पहले भी यहाँ के लोग हिंसा करते थे, वायलेंट पर उतरते थे, उसका प्रतिफल क्या होता था? उनके ऊपर मुकदमा होता था, उनको मुकदमा के बाद जेल में डाल दिया जाता था, उनको पनिशमेंट मिलती थी, उनका घर बर्बाद होता था। बहुत लोग तो चंपारण छोड़ के भाग गए थे। बहुत सारी बड़ी लिस्ट होती है जो कितने लोग ब्रिटिश प्लांटर्स के डर से अपने बाल बच्चों के साथ चंपारण छोड़कर नेपाल चले गए थे। गांधी ने कहा था जो इसका समाधान आप वायलेंटली नहीं कर सकते। वायलेंटली करने से क्या होगा? क्योंकि ब्रिटिश के पास में ब्रूटल फोर्स है, उनके पास पुलिस है, और पुलिस आपको फिर से अलग से एट्रोसिटीज करेगी। तो गांधी ने कहा जब हम नॉन वायलेंट से इस चीज को जीतेंगे, और गांधी ने शुरू में ही चंपारण में कहा दिया था कि यदि किसी गांव में किसी व्यक्ति द्वारा यदि हिंसक तरीका अपनाया जाएगा तो मैं हाथ जोड़ के यहाँ से चंपारण से छोड़कर चला जाऊंगा। और राजकुमार शुक्ल के लीडरशिप पर लोगों को इतना अधिक भरोसा था और इतना वो लोगों को बता चुके थे जो गांधी के आने के बाद क्या चेंज होगा, तो लोग इस पर विश्वास करते थे, और लोग हमेशा ही सत्य, अहिंसा और अहिंसक तरीके से गांधी को समर्थन किया था और गांधी के लीडरशिप को एक्सेप्ट किया था और गांधी को अपना लीडरशिप नॉमिनेट किया। हाँ सर, थैंक यू सर। अभी आई एम गोइंग टू कॉल अपॉन मिस शांति रामानुजम, HOD of Department of English, to please pose a question. Sir, good morning. I would like to ask a question. You have seen the Rajkumar Shuklaji's diary. What do you think is the most
effective or according to you is the most important page that you felt is could be shared with our students? The most important page in his diary that could be shared with our students. देखिए, राजकुमार शुक्ल ने जो अपनी डायरी में जिन चीजों का जिक्र किया है, उन चीजों को यदि आप डायरी को पढ़ेंगे तो उन्होंने बहुत ही छोटे-छोटे स्टेंजाज लिखे हैं। आज क्या हुआ, आज क्या हुआ, आज क्या हुआ। लेकिन उन्होंने गांधी के ऑल द एक्टिविटीज को उसने बहुत ही सुंदर ढंग से लिखा है। 2-3 जगहों पर में उसने उल्लेख किया है जो ऐसी मीटिंग हुई थी जहां पर कि लोकल फार्मर्स भी थे और ब्रिटिश ऑफिसर्स भी थे, और ब्रिटिश ऑफिसर्स एक तरह से डिफीटेड होकर के यहाँ से गए हैं। और उन्होंने इसका उल्लेख किया अपनी डायरी में, जो कैसे लोगों का मनोबल, कैसे वो धीरे-धीरे वो अपनी बातों को जोर से रखना शुरू करते हैं और कैसे वो निर्भय हो रहे हैं, कैसे वो ब्रिटिश ऑफिसर्स के डर में नहीं आ रहे हैं, कैसे जो आज तक पहले दुबके हुए थे चंपारण में और वो गांधी के आने के बाद लोग कैसे वो सतह पर आ रहे हैं, लोग कैसे एकजुट हो रहे हैं। और राजकुमार शुक्ल ने अपने उस डायरी के माध्यम से ये सपना देखा है तो यदि ऐसी ही बातें चलती रही तो कुछ दिनों के बाद ये प्लांटर्स यहाँ से चले जाएंगे। तो एक सोशल साइंटिस्ट के रूप में यदि हम राजकुमार शुक्ल के डायरी को पढ़ते हैं तो उनको ये उस पर में काफी विश्वास था गांधी के लीडरशिप में, और उनको पता था जो गांधी यदि आते हैं यहाँ पर में तो कैसे कैसे चीजें बदलेंगी। और उसी के अनुसार गांधी के उसमें तो गांधी से उनकी मुलाकात भी नहीं हुई थी, लेकिन शायद एक तरह से उनको ये पता था जो यदि समाज को चेंज करना है तो सबसे पहले समाज को एकजुट करना होगा, लोगों को समस्याओं के बारे में जानकारी देगी, लोगों को इसके लिए तैयार करना पड़ेगा जो आपका रिएक्शन किस प्रकार होगा। तो राजकुमार शुक्ल गांव-गांव घूम करके लोगों को इसके लिए तैयार कर चुके थे। और इसलिए मैं बार-बार कहता हूं कि जब गांधी चंपारण आए हैं तो पहला फेज जो लोकल जो वहां की समस्या थी, जो लोकल लेवल में थी, राजकुमार शुक्ल ने उसको रीजनल लेवल में डाल दिया है। और गांधी वहां पहुंच करके सत्य और अहिंसा के माध्यम से उस आंदोलन को नेशनल लेवल में बना दिया है। आज की पीढ़ी से मैं ये कहता हूं, जो किसी समस्या को समाधान करना है तो वो एक ही दिन में नहीं होगा, आपको धैर्य रखना पड़ेगा, उनकी बारीकियों को समझिए और उनको प्रॉपर टूल्स क्या होगा उसके बारे में राजकुमार शुक्ल ने प्रॉपर टूल्स खोज लिया था। राजकुमार शुक्ल समझ गए थे जो गांधी आएंगे तभी हो सकता है, अदरवाइज बहुत सारे लीडर्स को राजकुमार शुक्ल ने ट्राई किया था लेकिन वो सक्सेस नहीं हुए थे। तो किसी को भी समस्या के लिए प्रॉपर टूल्स की जरूरत पड़ती है, प्रॉपर लोकल अवेयरनेस की जरूरत पड़ती है, लोगों को एक फ्रीडम की जरूरत पड़ती है, लोगों के एक माइंडसेट चेंज करने की जरूरत पड़ती है, उसके बाद ही किसी समस्या का समाधान। Thank you, sir. Any question? Sakshi? Yeah, so it looks like we have covered all of our questions, and henceforth I express my gratitude to Bhairav Lal Das ji to have answered them so well. And thanks to all of those who had come up with such good questions. And they became a cherry on the cake, actually. So may I now request Adam sir to give his concluding remarks? Good morning to all of you, and a special thanks to our distinguished guest today, Shri Bhairav Lal Das ji, or Ravi Bhushan Roy sir. Thank you very much, sir, for being present on this day and have enlightened all of us regarding the role that is played by Rajkumar Shukla ji. As I was listening to you, you are giving minute details about every incident that took place between Mahatma Gandhi ji and Shukla ji. And I'm very much sure that all the members who are participating in this particular session have enlightened themselves with such details. And the research that you have done, sir, really it is wonderful. I thank you very much for all the details that you supplied to us. And I also thank Sir Ravi Bhushan Roy, sir, the grandson. Thank you very much, sir, for presenting today with us. And I also thank all the other participants who are present here. Thank you, sir. So
So thanks a lot for your address, sir. And now I'd like to call upon Ms. Akhila Ravuri, teacher, Department of English, to propose a vote of thanks to our guests. Ladies and gentlemen, very good morning to all. It gives me immense pleasure to propose a vote of thanks. First, I would like to express my heartfelt gratitude to our honorable speakers of today's webinar, Shri M. Ravi Bhushan Roy, grandson of Shri Rajkumar Shuklaji and Shri Bhairav Lal Das ji, for enlightening us with their inspiring speeches. Next, I'm grateful to our director, Mr. K. Praveen Kumar, for his constant guidance and support. My sincere thanks goes to Principal Ms. G. Mala and Head Department of English, Mrs. Shanti Ramanujan. Last but by no means least, I thank all the parents, staff, and students of our school. Thank you once again. This is Akhila, Department of English, signing off. Thanks a lot for your vote of thanks, ma'am. And well, last but not the least, I take the opportunity to thank each and everyone present here for their contribution and time in making this webinar a success. My sincerest thanks to our guests for their words which have given such a delightful experience. And now it's time for us to take a leave, hoping that you would cherish upon this enlightening experience just the way we did and we are gonna do. So thank you and have a great day ahead. Thank you, sir. Ravi Bhushan Roy.